Hello, 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 hello all. Welcome to the stream. I hope audio, video, everything is fine. It's been 2 days, I know, and without wasting a time, I'll quickly start. Today, I came up with a very extensive plan to start the stream. Uh, Before that, I'll just add the Discord link over here. I'll not paste the Discord. Uh, मैं अभी तक किए I was reading about the cycle detection but I couldn't. I have an extensive plan for today. The next goal of for me is to reach 100 questions as soon as possible because I am doing projects and all. I have to take a break on that and just focus on these things first. Okay, so message आपको हमारी कसम लौटाए pin message. Okay, so I have to reach 100 questions as soon as possible and I have made a plan. Which question should I been solving? So I have created this view. You can see this new database. Instead we can name it as uh, graphs God's plan. Hello Parf bro, how are you brother? So this was the total list that we were following, and inside every list I have added my go-to notes, whatever I have learned and what are the patterns that I wanna keep track of. So this is it, and from this I have created a today's stream queue. So I'm good, sir. How are you? I'm also good, bro. I'm also good. It's been like 2 days. I missed the stream, but today I won't. So quickly, let's start with on the last stream we were solving the single source path BFS pattern, and it had some more questions. Jump game 1 we solved, jump game 2 we solved. Now we have these many questions. These are little different. So I'll first start with snakes and ladder to brush up on the. This is a medium difficulty question. So I'll just search this. I know I should have reached 100 question by now, but nevertheless, we will now because we are doing so many things on the go. LeetCode is not the only goal that we have. We have many goals, and you can see I have yeah this HTML is looking pretty good, I guess. No, just let me check because I spent some time. I came up with my own idea of how to do that because I did added one browser instance in the OBS and then inserted some HTML and then it worked because I didn't want to create a Canva design and all. So I hope it's looking good. I also added a little bit of animations in that. Yeah, this is pretty. Thumbnail is good. By the thumbnail is good, sir. By the thank you so much, यार. ये बताओ ये ऊपर का जो इन्फोग्राफिक्स दिख रहा है तुम्हें स्ट्रीम पे, इज इट गुड? मेरे को ये सब चीज़ें करने में मज़ा आ रहा है एक्चुअल काम छोड़ के. मज़ा ही लेना ज़िंदगी का काम है. या सो दिस वाज क्या हम सॉल्व कर रहे थे कैन रीचेस. सो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था. इट वाज लाइक अ जंप गेम 1. सो नाउ दिस क्वेश्चन. तुम्हारा क्या चल रहा है पर्फ? What have you done till now? I guess your college has started again, right? If I'm not wrong. Okay, so let's read the question. Uh, you are given an n cross n integer matrix board where the cells are labeled from 1 to n square in a Botstoff-Eden style. What the fuck is this? Is a style of writing in which alternate lines of writing are acha. Baap re baap. Starting from bottom left of the board, acha, like a chessboard. That is board n minus 1 0. Yes, it's very good. Thank you. Uh, it will get start. It will get start not yet.
linked list almost finish. I'll start with stack and also SQL chal raha hai along with revising Java. Oops, nice. This is a nice progress. And alternating direction each row. Choose destination square next with the label. Uh, is it a different kind of a question? Yeah, it's a BFS. Let's see, yes, which companies it's been asked? Tesla, Google. Nice. Let me reset this. Reset the stopwatch. And alternating direction each row, you start on one of the square one of the board. In each move, starting from the square current, do the following. Choose a destination square next with a label in the range. This, okay, a bit confusing though. This choice simulates the result of a standard six-sided roll dice. Acha. There are always at most six destinations regardless of the size of the board. If the next has a snake or ladder, you must move to the destination of the snake or ladder. Otherwise, you move to the next. The game ends when you reach the square n square. Okay, okay. So it's a n cross c, and a board square on row R and column C has a snake or ladder. This mm, not equal to -1. Okay. The destination of the snake or ladder is these squares 1 and n square are not the starting points of any ladder. Note that you only take a snake or ladder at most once per dice roll. If the destination to the snake or ladder is the start of the another snake or ladder, I guess they are explaining the snake and ladder in a difficult language. For example, suppose the board is -1, 4, -1, 3. Acha. And the first move your destination square is 2, you follow the ladder to square 3, but do not follow the subsequent ladder to 4. Return the number of dice rolls required to reach square n square. If it's not possible to reach the square, return -1. The fuck. सर आज लिंक्डइन में मैंने एक प्रोफाइल देखी, ऑलमोस्ट 2500 प्रॉब्लम्स किए हैं उसने, कोड फोर्सेस प्लस कोड शेप प्लस लीड कोड मैक्सिमम ही हैज डन. बाप रे. Yeah, some people really like this struggle. They do all the code forces, ये वो सब करते रहते हैं. I have not aimed to do that in near future. Yes, I opened the last solved question because it should be almost similar to the this question shortest uh, path with obstacles. So this is saying this कि input board ये सब दिया हुआ है -1 not the board square on row and column has a snake or ladder if not equal to -1. Snake or ladder, that we don't know. The destination of that snake or ladder, square 1 and n square are not the starting points of any snake or ladder. Chalo sir, I'll also study along with you. The stream is on and only I'll study along. Yeah, that's a really good thing that I am suggesting to everyone to follow. We can study together. If you like this idea, you can. I was doing some changes in the setup and all, and it took me some time to set up. So okay, ये जो question था, I guess this is exactly similar kind of a question that we did.
So I guess this is not the exact one, so we have to read this multiple times because it's something new pattern. uh, you are given an cross and matrix board where cells are labeled as this 1 to n square 1 2 3 4 5 36, so 6 cross 6. Okay, 6 square 36. Starting from the bottom left of the board, n minus 1 comma 0, n minus 1 as in 6 minus 1, which is 1 comma 0. So this is 1 comma 0. And alternating direction from the board, starting from the board. You start on square 1 of the board, and starting from the square current you do the following: choose the destination square next with label this choice simulates the result of a standard six-sided roll dice. Choose a destination square next with a label in range current plus 1 minimum current plus 6 comma n square. Okay, input is this board. 35 pe there is a ladder, and what about 13? 15 there is a ladder, 13 there is a snake. Okay, so that we don't know, is it a snake or ladder, is it so? And then 17, there should be some 17 out here. uh, there's no 17 mentioned in this one. 35 13 is mentioned, uh, 14 is not mentioned, 15 is mentioned. In the beginning you start at square 1 uh, at row 5 comma, just a second, you decide to move to a square 2. In the beginning you start at square 1 at row 5 comma row 5 column 0. You decide to move to square 2 and must take the ladder to 15. I didn't really understand this board input output game. पाव भाजी इंग्रेडिएंट भाई तुम लोग चाट पढ़ते हो हाँ? मैंने देखा। ये मेरा स्क्रीन स्टक हो गया क्या? ए मैं मेरा स्क्रीन ही स्टक, व्हाट द फक यार। थैंक यू फॉर दैट मैसेज। Screen is stuck and I'm reading the question since then and nobody said anything. Bro, what else you read? तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा था इतनी देर तक, और लोग ऐसे ही देख रहे थे। पाव भाजी इंग्रेडिएंट अभी जस्ट पाव भाजी खा के आया भाई मैं। तुम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा होगा लग रहा है। पार्थ शर्मा, वेलकम टू द स्ट्रीम। यार मेरे को ये समझा नहीं कि बोर्ड इंटीजर मैट्रिक्स विद द सेल्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to n square starting from bottom left and alternating direction each row. You start on square 1 of the board. In each move starting from square current do the following: choose a destination square next. In the beginning you start at square 1 at 5
You decide to move to square 2 and take the ladder at 15. You then decide to move to square 17 and must take the snake to square 13. You decide to move to square 14 and must take the ladder to square 35. You then decide to move to square 36. Acha, Parth. I need more explanation on this question. So let me ask Tipati. Uh, can you explain me the question? Snakes. पहला ही क्वेश्चन में टाइम लग जा रहा है समझने में. आपको हमारी कसम लौटाइए. This is a single source path BFS problem similar to open lock and word ladder. अच्छा, open the lock and word ladder. Word ladder. Yeah, these two questions we solved and from there we can refer. But अपने को question नहीं समझा. How the board is numbered. The numbering starts from the bottom left, but each row alternates the direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 like this. This alternating is this. So the difficult part is to converting a square number such as 17 into corresponding row and column. What does each board value mean? This is what I want. This is no snake, no ladder. For example, board row column means that after landing on square 25, you must immediately move to square 25. Oh, okay. Now I understood. It can represent a ladder when 25 greater than current square, 25 less than a snake. Acha, based on this condition, it is a snake or ladder. Okay. If it is greater than 20, matlab the current square is less than the current value. Current square a ladder when 25. अच्छा, करंट स्क्वायर का जो वैल्यू आता है वो वैल्यू अपने को निकालना पड़ेगा हर एक इसका. A snake when 25 greater than current square. What choices do we have from each square? From any square current, the dice can produce this 1, 2, 3, 4, 5, 6, and therefore the possible next squares are 1, 2, 3, 4, 5, 6, but you cannot go beyond n square. Okay, no code. कोड नहीं चाहिए अपने को. uh, Good evening Anna, good evening Vignesh, welcome to the stream Anna. uh, Hello Atharva, welcome to the stream bro, and thank you for reminding me every day that I'm not streaming. So the first and foremost thing that this pattern require, because I know I'm solving this pattern, which is like the usual queue is what we need, the visited array that we need. So these two things we can start with, and we have this input. It's a little bit of trickier question, trickier as in it has too many information to think about. It's not a straightforward thing. Uh, in the beginning, you start with square 1.
Acha, this is like uh, a board that we have to build. So this is our starting. This is this -1 and 2 is this 15. Okay. And then this is minus ulta minus, and then this is like this. So, but it should have been started with the 13. No. Mm, -1 35. Yeah, -1 this is 35 because it will go to the 35. We will know because 14 is less than 35, hence it's a ladder. Then -1 -1 and 13. So this 13 is less than 17, hence it is a snake. Okay, and then -1. Now what's the output is required? Return the least number of dice rolls required to reach the n square. तो डाइस हम कहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं? इन्होंने बस बोर्ड दे रखा है, तो डाइस के लिए हमें लिखना पड़ेगा शायद. Note that you only take a snake or ladder at most once per roll or dice. तो अपने को डाइस कहाँ रखना है भाई? तो डाइस के लिए आई गेस वी नीड अ सेपरेट फंक्शन. uh, hello, yes, Mike. Is that dynamic programming? No, it's not dynamic programming. सोच रहा हूँ स्ट्रीम में लोग रैंडम क्वेश्चंस देते हैं, उनको डायरेक्टली ना लिया जाए. हाँ, यू शुड स्टिक टू योर ओन पैटर्न, यू नो. आई एम स्टिकिंग टू माई दिस प्लान. सो यू शुड स्टिक टू योर ओन प्लान, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. The people like Sri Sai can solve anything, whatever comes along the way. But for us, we have to take the steps very carefully. बड़ा ओवरवेलमिंग हो गया आज. क्यों, क्या हो गया अथर्व? तो फर्स्ट आई शुड हैव अ क्यू. मैं क्यू लिखने के बाद आई कैन थिंक मोर. न्यू array take, because array take is faster than queue. uh, then we need boolean visited, so these two things we for sure need is equal to new boolean, and we need rows and columns. So for rows and columns are like the same, so we will just have int n is equal to a board का length. I still didn't understand कि dice का हम कैसे करने वाले. length length, and then this n comma, but actually it is not starting from 0, so we have to like keep +1, like we were doing in the some of the problem जहाँ पे numbering 1 से start होता है, वहाँ पे we usually take n+1. Okay, it's 6, because the number of this, like index of the position of this is 1. uh, it's not 0 comma 0, it's simply 0 comma 1, 0 comma 2, like this. uh, लोग सोचते हैं मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए सॉल्विंग स्पीड वगैरह, उन लोगों से कंपेयर कर देते हैं जो 6-7 साल से ज़्यादा से प्रोग्रामिंग सॉल्विंग ही कर रहे हैं. आज एक बंदे को या नाइस. कृष्णा जी, हेलो हेलो कृष्णा, वेलकम टू द स्ट्रीम. इनडायरेक्टली बार बार बोल रहा था, या सम पीपल डू दैट थिंग. एवरीबडी हैज देयर ओन पेज, डोंट कंपेयर विद others. I like to enjoy what I'm doing, so fuck the world. I just don't care. Without learning concept problem हवा में हो जाएगा. हाँ, true.
दैट अपने को ये डबल boolean चाहिए क्या, मैं ये सोच रहा हूँ, बिकॉज वी हैव दिस इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6, वी कैन हैव ओनली दिस अंडरस्टैंडिंग कि 1 विजिटेड है, 2 विजिटेड, हम अपना एक इंडेक्सिंग नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, तो इसको हम सिंपल रखते हैं, दिस विल बी द नंबर, हम इसको 0, 1 और ये सब चीज़ें के झंझट में नहीं पड़ते, वी कैन डायरेक्टली से दिस इज स्क्वायर 1, दिस इज स्क्वायर 2, दिस इज स्क्वायर 13, दिस इज स्क्वायर 27, like this. So uh, this will be a better way, ठीक है। और अपने को डाइस के बारे में भी सोचना है, एंड हाँ, रिटर्न ये समझ में आ गया मेरे को पूरा। नोट दैट यू ओनली टेक अ स्नेक और लैडर एट मोस्ट वंस पर डाइस रोल, ठीक है। मतलब एक फंक्शन हम बना सकते हैं, उससे वो डाइस रोल का आउटपुट ले लेंगे, वो दैट आई डोंट नो हाउ टू राइट दैट फंक्शन, बट विल फिगर इट आउट, and then based on that we'll do other calculation. If the destination to the snake or ladder is the start of another snake or ladder, you do not follow the subsequent snake or ladder. Oh, this is a edge case, this is an edge case. For example, this on the first move your destination square is 2, you follow the ladder to square 3 but do not follow the subsequent ladder 4. Return the least number of dice rolls required to reach n square. So अपने को डाइस रोल का काउंट भी रखना है साथ में, ओके, दैट मीन्स मूव्स, लेवल्स इन शॉर्ट, ठीक है। तो हम हमेशा वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, where the cells are labeled is starting from this, starting from the bottom left of both this, so we can add this to queue, इसमें हम ये 1 ऐड कर देते, शायद ये मैं कर रहा था क्वेश्चन, इसलिए मेरे को हल्का हल्का याद है कि क्या हम कर रहे थे, एंड देन विजिटेड 1 इक्वल टू ट्रू हम मार्क कर देते, शुड वी, ओके, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पोजिशन। Now we added something in the queue, we have to pull that out, and based on that we have to think उसके साथ क्या करना है, that node. So let me write that function and we'll see, while queue is not empty, while the queue is not empty, uh, int node is equal to, this is the standard pattern, I'm not doing something extraordinary specific to this question. So int node is what we are getting back. Okay, so what we can do with this, no, sorry, I'm wrong at the pattern. In size is what I have to take first, in size, and for on that I have to run the loop, int I 0, I less than size, and I plus plus. Okay, inside this whatever the fuck, the first is int node, is like q, here we will pull the element out, dot poll. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड थिंग। अब इस डेटा के साथ हम क्या करेंगे, अब क्या करना चाहोगे इस डेटा के साथ? सो वी क्यू में हमने पहला पोजीशन डाला, उसको हमने पोल किया, एंड नाउ देन वी कैन थिंक अबाउट व्हाट, कि इज इट स्नेक और इज इट लैडर, दैट काइंड ऑफ अ कैलकुलेशन वी हैव टू डू, व्हाट यू गाइस आर सेइंग। अरे वो खुद बिगिनर है, 6-7 प्रॉब्लम, ओके होते हैं ब्रो, यू हैव टू जस्ट इग्नोर मोस्ट ऑफ देम। ओ सॉरी, हाँ हेलो हेलो प्रज्वल, हाउ आर यू? आई एम गुड ब्रदर, कैसे हो सर जी? आई एम गुड प्रज्वल, हाउ आर यू ब्रो? टीच अस समथिंग प्रज्वल। सो यूजुअली हम इस जगह पे एक लॉजिक लिखते हैं, या एट दिस पोजीशन, सो वी नीड
some logic at this position as well. So we have to think about what's our goal is to reach this 36. So what's the target now? So target is n square, so we can have a condition over here. If this node equal to n into n, that is 36, then return we have to have the what it said, return the rolls, dice rolls, I can name it as dice rolls is equal to 0, and then we will return this dice rolls. So it will at least surpass our first test case that we have. There is some kind of a mistake in syntax mistake. No, I don't think so. Okay, so this becomes our base condition for this particular type of pattern, and then we have to have a for loop again. इस for loop में हमें उसके neighbor subs not all the neighbors but the exact next neighbor पे जाना है based on what the value we are getting. So current plus dice roll value. So this dice roll value uh, current plus dice roll value, ठीक है, ये अपने को बताएगा नेक्स्ट सेल क्या है. सो डाइस रोल के लिए तो एक फंक्शन चाहिए अपने को, but I'm thinking कि the dice roll would give any random value, then how the fuck the answer would be same again. Do we have some restrictions? Do we have any restrictions on the dice roll function? I need a coffee. I need a coffee. आपका क्या हुआ? 2 days इशू सॉल्व हुआ? हाँ हाँ, यस 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 ब्रदर, सॉल्व. मेरे को डॉकिंग हब चाहिए था और बाकी सब सेटअप वगैरह करना था, और मेरी फैमिली भी आई हुई है, तो आई हैड टू गो आउट विथ देम. सो ऑल सॉर्टेड. You can see some things, some new things I have added to the stream. Thanks for asking अथर्व, it's solved. अभी तो मैं वर्क लाइफ बैलेंस सीख रहा. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वर्क लाइफ बैलेंस. इज दिस रिलेटेड टू शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम? यस इट इज शॉर्टेस्ट पाथ अल्गोरिथम. लेट मी शो. अरे यार ये कहाँ चला गया अपना भाई कोड? ओ शिट. या इट्स देयर. So single source shortest path, it is this specific name. I have segregated all the graphs के problem into this type of in these types. ठीक है, there are these many types. Some of them are still not refined, but till the numbers are present, all of them are refined. So this is the pattern, exact pattern if you want. Single source shortest path BFS. Shri Sai. I asked some question. There is no actual dice roll function in LeetCode. We simulate every possible dice result from 1 to 6. अच्छा, जस्ट 1 to 6 का मेरे को आउटपुट चाहिए. ओके ओके, मतलब एक पहले 1 आएगा, पहले बाद में 2. हेल मैन. क्या हो गया अथर्वा? व्हाट हैपेंड? अरे मैं देखा था तुम लोगों को, ये मैंने मस्त चीज़ बनाई है, पता है. आई फिगर्ड दिस आउट. यहाँ पे आई रोट अ वेरी सिंपल. ये जो तुम्हें दिख रहा होगा ना, ये मतलब एआई जनरेटेड ही है. वहाँ पे स्ट्रिप दिख रहा होगा तुम लोगों को कोड में, एंड दिस design I don't have to change, I just have to go and change over here. So it's a day 63 graph BFS. मैंने 19 डाल रखा था because I was thinking कि 19 question, but usually it should be 3 questions. Okay, and overall goal, I just have to save this and refresh in the stream, and you guys can see the update. I have kept the low latency as well. So it is nice, no? ऐसे इसको तो कोडिंग कहते हैं, यही तो मज़ा है. Did it change? Yeah.
तो अगर डाइस ये अपना एज इट्स सेइंग कि अपने को बस ये लेना है, तो दिस इज द फॉर लूप दैट वी कैन यूज एज इट इज this for loop in die starting from 1 and less than equal to 6, because this time no neighbor, so this, and we need to have some current, which is the current row and position. This is our current, so I can name this because most of the question में इसको current ही संबोधित किया जा रहा है, तो हम इसको current ही लिखते हैं. So int next is equal to current plus dice का जो भी वैल्यू आया वो. ओके, सो ये वैल्यू अपने को कमेंट रहने देते हैं. ये वैल्यू अपने को ये मिला, फॉर एग्जांपल करंट इज 1, फर्स्ट इट विल गिव अस 1, सो वी विल गो टू 2. सो फॉर श्योर हम बाजू वाले एग्जैक्ट राइट वाले इस पे जाएंगे. तो ये स्नेक्स एंड लैडर एकदम लक का खेल नहीं है, ये प्रोग्रामेटिक है. मतलब वी आर एक्चुअली मूविंग टू ईच एंड एवरी स्क्वायर फ्रॉम 1 2 3 4 5 6. सो नाउ देर इज समथिंग दैट दे सेड, बिकॉज पोजीशन का इशू है. इट इज़ नॉट लाइक कि 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से 7 चालू हो रहा है, ना कि यहाँ से. तो अपने को हर एक बॉक्स का एक पोजीशन लेना पड़ेगा. फॉर दैट वी नीड टू हैव सम फंक्शन. ओके, सो दैट इज द एक्चुअल वैल्यू जो हमें आई गेस क्यू में ऐड करना होगा. ओ मैन, गेटिंग कंफ्यूज्ड. I'm planning to switch new job in Pune or Bangalore. Any suggestions? Bro, Pune is cheaper than Bangalore. If you are currently in Pune, then, and if you are gonna go to Bangalore, then do ask for more hike than Pune. At least 5 lakhs more than what you will get in Pune. Because Bangalore will fuck with you. बाकी तो तुम और डिटेल्स बताओ, तो हम तुम्हें और चीज़ें बताएंगे क्या और कैसे. uh, इस एन स्क्वायर को अपने को एन स्क्वायर ही चाहिए अपने को. वर्ड लेटर में हमने क्या किया था? This condition, then this another for loop, which is getting us the neighbor. Now also we are getting the neighbor if it does not contain inward list, and then this and level plus plus. So after this for loop अपने को ये moves भी plus plus करना होगा. After this for loop we'll just do this dice rolls plus plus. क्या क्या हुई इसको? अच्छा, इसको रिटर्न नहीं मिल रहा. ये डाइस रोल के लिए फंक्शन नहीं चाहिए अपने को फंक्शन चाहिए पब्लिक इंट गेट पोजीशन, बिकॉज अपने को करंट डब्बे का पोजीशन चाहिए. ओके, सो रिटर्न समथिंग फ्रॉम हियर एंड एंड में इफ नथिंग इज देयर, सो रिटर्न -1 दे सेड ना, रिटर्न -1. या, सो दिस विल बिकम. ए क्या हुई इसको? ये क्यों रो रहा? अच्छा, semicolon is missing. Okay, so it will at least pass one test case. New boolean. -1 किसका आंसर है? क्या नहीं है? -1 वाली टेस्ट केस नहीं है, इसलिए वो नहीं हो पास हो रहा, नहीं तो इट विल पास. इन नेक्स्ट और ये हमने ले लिया, और एंड देन वी हैव टू चेक फॉर द टारगेट.
Just a second. I need coffee. हॅलो, झोपलीस का? मला कॉफी देऊ शकतेस का? एक ब्लॅक कॉफी. Okay, so uh, here I am thinking about one more condition. Target is n square, n इक्वल नहीं, वो तो हमने पहले ही डाल रखा है यार, ये नहीं चाहिए अपने को यहाँ. Now I'm point blank. Uh, just don't tell me the answer or final code, bus tell me if I'm on the right path, because I don't want to waste time in wrong direction. Yes, absolutely the right path. The BFS skeleton is start from square one, use Q. वी आर करेक्ट. अब यहाँ पे क्या करना है ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ. अपने को नेक्स्ट मिला, ठीक है, नेक्स्ट मिला तो अपने को चेक करना है कि इफ इट्स अ लैडर और अ स्नेक और नॉर्मल बॉक्स, तो उसके लिए अपने को उसका पोजीशन चाहिए इसका. तो हम पोजीशन कैसे लेंगे उसका कि जो इंट रो जो इसमें है अपना बोर्ड में है, तो हाँ, बोर्ड का अपने को रो और कॉलम चाहिए, वो अपने को गेट पोजीशन में भेजना पड़ेगा एंड देन उसके ऊपर से अपने को फिगर आउट करना होगा. दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग. Jot. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. इसका पोजीशन बोर्ड के हिसाब से कुछ तो होगा. इट्स 0,0 if I'm not wrong. So board position is can start from 0, this is a confusion from the question. Board position can start from 0, 0, right? Okay, this is where the first confusion is. uh, the 2D indexing टॉप लेफ्ट से, हाँ उसने ये बताया था अपने को.
So the first cell, so it's starting from this is 0 comma 0, so this is 0, this is 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, so this is wrong and इसका position is n minus 1, वो क्वेश्चन में बताया हुआ है n minus 1 comma 0, so that means it's 5 comma 0, correct? Yeah, 5 comma 0. mm, डिस्कॉर्ड पर नोटिफिकेशन नहीं, अरे यार मैंने डाला नहीं यश भाई, लेट मी पोस्ट, मैंने सोचा आज नहीं डालते डिस्कॉर्ड पे, डिस्कॉर्ड का लिंक यहाँ डाला है मैंने, वहाँ पे नहीं डाला। बिकॉज आज का क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, दैट्स वाई आई डिडंट पोस्ट इट। This is what next is, and we can simply, like, if I think logically, next should be less than n square. Okay, if it's greater than n square, then we can simply return uh, return dice rolls कर सकते हैं, या it's a loop, so we can break the loop directly. It cannot go beyond that. If not, अब वो हर एक में ऐड होगा, नेक्स्ट वैल्यू आएगा, तो अपने को पोजीशन कब चाहिए उसका। Suppose the board is and the filter and the first मेरा destination is 2, और अपने को पोजीशन की ज़रूरत भी क्या है यार। I'm not able to understand guys, anyone can help? अपने को बोर्ड पे मूव करना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को उसका रो और कॉलम तो कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, वो कहाँ से आएगा उसका, क्योंकि हमारे पास तो डबल फॉर लूप भी नहीं है कि आए और जे ले लें हम यहाँ पे। What would the get position function should return? I guess this should return row and column instead of this. Instead of returning just int, I am guessing it should return this. Matrix coordinates. Int square 7. Acha, it should return, yeah, I'm right. It should return row and column. The simplest return type is this. Int square and int n. Okay, let's take it as it is. It will take int square 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 and int n. Okay, and based on this we have to like return the position, row comma column. और वो रो और कॉलम अपने को यहाँ लेना होगा,
ताकि हम कुछ कर पाए। इंट रो, इंट कॉलम और इंट वैल्यू इज इक्वल टू गेट पोजीशन। स्क्वायर मतलब क्या? स्क्वायर मतलब आई गेस करंट और नेक्स्ट। Next is what we have calculated, so we will pass next and n is n. Okay, so it will be value 0, and I'm very confident that I'll solve this question, but it will take some time. ठीक है, अब now we have to figure out, ये होता है पहले ये फिगर आउट करें, पहले ये फिगर आउट करें। ठीक है, हम इसको बाद में देखते हैं, पहले ये फिगर आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें रो और कॉलम मिल गया इसका, इस करंट नेक्स्ट का रो और कॉलम मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर ये स्नेक मतलब ये लैडर और फॉर एग्जांपल इफ इट्स अ लैडर और स्नेक, वो हम फिगर आउट कर ले, उसके बाद हमें वो वैल्यू मिलेगा। उसके बाद वो हम उसको क्यू में ऐड करेंगे एंड देन फ्रॉम देयर वी विल अगेन रोल द डाइस और आगे का कहानी चालू करेंगे। कॉफी इज हेल्पिंग। क्या बोल रहे हो? प्लीज़ आई डिस्कॉर्ड पर नोट अभी मैंने डाला डिस्कॉर्ड पे। आज एक मीटिंग ज्वाइन करा कॉलेज का ऑन बोर्ड जूम। क्या हुआ उसमें? गुड इवनिंग। अरे मंगेश भाऊ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हेलो ब्रो, आर यू जाकी? हेलो हेलो ब्रदर, हाउ आर यू गाइज? हाउ आर यू गाइज? यार एक बार ये फिगर आउट हो जाए ना बहन, जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये कुछ नया है। उस दिन मस्त हमने सॉल्व किए 3-4 क्वेश्चन। ब्रेक नहीं होना चाहिए। अबे यार क्या हो गया? तो ये नेक्स्ट वैल्यू जो है इसका वैल्यू है। अगर इसका वैल्यू इसमें जो दे रखा है 15 है, तो ये लैडर है। अगर ये -1 होता तो कुछ नहीं होता, तो हम नेक्स्ट ये कर लेते। तो कंफ्यूज ब्रदर। और गेट पोजीशन का अपना कैसे बनता? गेट पोजीशन पहले फिगर आउट करते हैं। मेरे को 2 मिनट दो गाइस प्लीज़, मैं थोड़ा बात कम करता हूँ क्योंकि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। बच्चे तो अच्छे थे, फैकल्टी वाले टेक्निकल इशू बता रहे थे, बार बार माइक ऑफ ऑन। 500 बच्चे, ओ बाप रे बाप, मोस्टली पंजाबी। ओके, now I am third, now I am in third sem, I have to learn Java and I start how do DSA give me roadmap। यार मैं बहुत बार बता चुका हूँ। if you are in third year, तुमने I am guessing, I'm answering you first, I'm guessing that you have done basic Java। अगर तुमने basic Java कर लिया है तो उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट लीड कोड, एंड लीड कोड में बेसिक प्रॉब्लम्स करना चालू कर दो, जैसे स्ट्रिंग एरेज वाले क्वेश्चन एंड देन पैलिंड्रोम वगैरह के क्वेश्चन एंड देन थोड़ा बहुत कलेक्शन वाला। इफ यू हैव स्टार्टेड ऑन एडवांस जावा, द डे यू स्टार्ट ऑन एडवांस जावा, स्टार्ट डूइंग द कलेक्शन हैश मैप्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इतना है। ये करते रहो और साथ ही साथ एडवांस जावा ख़त्म करो। उसके बाद once you finish advanced java, java basic java, advanced java, then you can start with hibernate, if you have knowledge of database, of course the SQL database, then you can start with hibernate, then learn spring, and then finally you can learn spring boot, and then it will uh, it will be the final stage for you. Okay, these many things you can do.
भैया हम कैसे रिटर्न करेंगे? यहाँ पे सेल नंबर, रो और कॉलम क्या है? हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे स्क्वायर मिल रहा है एंड इंडियन स्क्वायर इज दिस वन। तो फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर विल बी n minus 1 comma 0, it's the coordinate of this. If it would be 4, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 comma 0, इसका 4 comma 0. Oh, there is a pattern over here. If for example 18, for example this 7 will have 5, 4 comma 5. No, I'm doing wrong. This is 5 comma 1, this is 5 comma 2, this is 5 comma 3, 5 comma 4, 5 comma 5, and this is 4 comma 5, which is correct. This would be 4 comma 4, this would be 4 comma 3, 4 comma 2, this would be 4 comma 1 and 4 comma 0. Okay, so something floor or some ceiling we have to do. ओके, आई एम समित, आई थिंक यू फॉरगॉट। अरे नहीं यार, अरे तुम एट द रेट बदल रहे हो। हाउ वुड आई फॉरगेट यू ब्रो समित? आई डेंट रिमेंबर कि दिस इज योर अकाउंट, आर यू जैकी, यू हैड सम 0xyz यूजर नेम अर्लियर। इज देयर अ रीजन योर यूजर नेम इज स्पेल्ड डेवलपर एंड नॉट डेवलपर? यस ब्रदर, it's not available, developer is not available, hence it is so. सही पकड़े हो यश भाई। YouTube allows only the unique usernames, and indie developer is very general term and somebody has already taken that up. मेरे को लग रहा है ये फंक्शन मेरे को लेना पड़ेगा इससे। लेट्स गेट दिस फंक्शन फ्रॉम हियर। सो नहीं यार, हम फंक्शन लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, because I'm not able to think about it. जब तक पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक मेरा मुंह कम ही चलता है। मैंने ये नोटिस किया है, एक बार पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। देयर इज समथिंग that
I am not sure about this question. What the fuck, yaar? For example, if I take the index simply, I'll just minus square minus 1, ठीक है. तो ये index मिल जाए, because if it's 1 we will get 0, and then from here we have to like calculate the row, but there will be like two different variations to this. Row number के लिए तो I don't think the variation would matter. So for example, our index is 0, then what would be the row number? For example, our index is 0, what would be the row number? 0. Okay. Row is 5, but so what's the row for square 1? Is it 0 or is it 5? For square 1 the row n is n minus 1 based on if n is 6. Acha, row becomes 5. If n is 6, row becomes this, column becomes 0. By the way, when you started coding for the first time, 2021 में मैंने start किया था. 2020 मतलब seriously 2020 से चालू किया था, sorry, seriously कोड करना. उससे पहले तो I was in the mechanical stream, supply chain वगैरह. I was expert in other things. Make sure to subscribe to the channel, guys, to see this type of technological and good content again. Yeah, wrong time to promote, but yeah, thank you, Atharva. हा देवा, वाचव रे देवा. So if we do this, help me write the get position, because I am very blank for this. Write the get position function.
इसने कोड ही दे दिया, ठीक है। Which row is the square? Upward from the bottom. Upward from the bottom. Function for this. क्या किया इसने? int row n minus 1 minus int column square minus 1. Explain bhenchod this. Assume n equal to 6. हिंदी में क्यों बता रहा है? बोर्ड की हर रो में 6 स्क्वायर्स है. Y square minus 1, remembering 1 based. Numbering is 1 based. But division modulo formulas naturally work with 0 based numbering. So इंडेक्स, ये तो मैं समझा, ये मैंने खुद से याद किया. Square 1 2 3 4 5, index 0 1 2 3 4 5 6, modulus of 6. 0 1 2 3 4 5, so square 1 column 0, square 2 column 1. Okay, okay, column वाला I understood कि column is this. पहले इसने क्या दिया था? Column is this. Index modulus n. ठीक है. रो का मैं नहीं समझा. Explain row. Row bottom. For now, focus only on this n minus 1. This, assume n equal to 6, matrix rows, indexes, top row, bottom row. Yeah, but snakes and ladders numbering starts from the bottom first. So square minus 1 divided by n tells you how many rows above the bottom the square. Squares 1 to 6, 0 rows are above the bottom, 7 to 1 row. Okay, from the bottom, it's saying from the bottom. Uh, so we subtract the number of rows above the bottom. Square minus 1 minus 1, 0 equal to 0. So row 5 minus 0. So square 1 is on row 5. Acha, square 1 is on row 5 is what they are saying. So यहाँ पे अच्छा कोड ये था, this and intro this. So int row from bottom, index this and row from bottom this. ठीक है. तो this is for column and this is for row. तो ये final row अपने को मिल गया and ये column मिल गया. और भी कुछ किया है क्या इसमें? every alternate row is numbered right to left. So row from bottom this. Now also explain this. इसको ही क्यों छोड़ दिया?
क्योंकि नंबरिंग बदल रहा है। फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये 7 यहाँ नहीं चालू हो रहा है, यहाँ चालू हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज समथिंग, दिस पार्ट हैंडल zigzag numbering of the port. If row from bottom modulus 2 equal to 1, so column this. Assume n equal to 6, the rows from bottom are numbered like this. Rows from bottom 0 left to right, rows from bottom 1 right to left, rows from bottom left to right, right to left. So whenever a row from bottom is odd, okay, this the row runs in reverse direction and we need to flip the column. For example, square 7 before reversing, 7 minus 0 modulus 6 is 0, normally this, but squares are 7 to 12 are arranged in this. So the square should be the rightmost column. So n minus 1 minus column. Okay. So column equal to क्या था, n minus 1 minus column, n minus 1 minus column. Okay, and when this column modulus 6, क्या किया था इन्होंने, 6 नहीं, modulus n, modulus 2, अच्छा रो फ्रॉम बॉटम इज ऑड, दिस पूरा ही ऑफ है भाई इसमें हम. Okay, so this is what the get position function should be. बट इस पोजीशन से अपने को अभी रो और कॉलम मिल गया कि जो भी उसका रो और कॉलम वैल्यू है. Based on this row and column, we have to just check now कि if it's not equal to minus 1, because minus 1 is like normal, so both row comma column is not equal to minus 1. ठीक है, देन ये नेक्स्ट अपना मतलब बोर्ड का जो पोजीशन है नेक्स्ट, वो हम इसमें दे देंगे. तो नेक्स्ट इज इक्वल टू जो भी मतलब रो कॉलम. ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल वाला सेल. नॉर्मल होता तो हम आगे बढ़ते, लेकिन नाउ इट्स लैडर और स्नेक जो भी है, तो उसका जो भी नेक्स्ट वैल्यू वो हम डाल देंगे. अगर ये ज़्यादा है तो वो ब्रेक कर रहे हैं हम, विच इज़ फाइन. एंड देन वी हैव टू अगेन चेक कि विजिटेड वाला भी कुछ चेक करना पड़ेगा अपने को. इफ इट्स विजिटेड, अपने को क्यू में ऐड करना है बेसिकली. तो बेसिकली इट शुड नॉट बी विजिटेड. सो yeah, I guess it's done now. Then we have to mark this next as visited. But from the snake we can come back to that position, q dot add this next and we'll pop this out next, and वहाँ से हम आगे का कैलकुलेशन. ये हो गया मेरे ख्याल से. दिस विल वर्क. ओ, index 15 out of bound for length 7, line number 36. What you guys are saying. बाय द वे मैंने बताया मेक श्योर, मतलब ए प्लस बी वाले टाइम से डेटा टाइप्स लूप्स आपके कंपनी में बीसीए वाले लोग. हाँ हाँ है. मेरा एक दोस्त था बीसीए से, बीसीए का, बट ही वाज फ्रॉम आईआईटी कानपुर, नो आईआईटी भुवनेश्वर से था वो. ही डिड बीसीए.
अच्छा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं आपसे रिलेटेड? हाँ हाँ पूछो पूछो। हेलो टेम्प। हेलो भैया, हेलो टेम्प, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। पूछो अथर्व, सॉरी मैं मैसेज नहीं देख रहा था, सो आई मिस्ड। If this next is greater than n square, that means 36, so we are coming out. So why it's going out of bound over here? So we have to again check over here if the next is, and this next should be less than n into n. यार ये पहले n स्क्वायर को तो मैं इधर ले लेता हूँ भाई, and target is equal to n into n, and then this target current equal to this, and then next is less than target, and array 15 out of bounds for length 7, line 37, length 7 कहाँ पे मतलब? ओ, हमने एक गलती किया है यहाँ पे, that should be 66 और टारगेट, और आउटपुट -1, -1 ही आया भाई आउटपुट। ये +1 चाहिए था कि प्लस ये चाहिए था? शायद +1 नहीं चाहिए। क्या हुई यहाँ पे, -1 ही क्यों आ रहा है? अच्छा इसकी ज़रूरत नहीं है फिर ना। बुलियन टारगेट आर, ये कहाँ से आ गया? इंडेक्स 36 आउट ऑफ बाउंड फॉर लिंक 36, ओके, तो यहाँ पे +1 ही चाहिए। इट वुड बी 37। ओ, तो हम क्या हो रहा था? -1 क्यों आ रहा था फिर? डिड इट वर्क? ओ इट वर्क, ओ इट वर्क वेरी वेल। Okay, it worked. Now guys you can like the stream. Hey, have you been giving interview recently? Do they still ask DSA like we have AI to code and design? Yeah, yeah, they do ask DSA. I haven't given interview, लास्ट वन मैंने दिया था लेकिन उसमें पूछते हैं
Yeah, they do ask. They ask sometimes simpler question depending on the type of company, the level of company they are in. उस बेसिस पे वो डीएसए का क्वेश्चन भी वैरी होता है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछे। क्या आप मेरी एज में लर्न इन पब्लिक करते, लाइक मैं डीएसए लर्न करने के साथ ये कर रहा हूँ एकदम बिगिनर से, क्या आपको ये सही लगता? हाँ हाँ यार, देखो ये सब तुम, मेरा ये कहना होगा अथर्व, यू हैव टू ट्राई मल्टीपल टाइम्स इन योर लाइफ मल्टीपल थिंग्स। तुम जितने ज़्यादा बार फेल होगे ना उतना ज़्यादा तुम रिफाइन होते जाओगे। सो इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ यू डू और यू शुड नॉट डू, इट्स द क्वेश्चन ऑफ वॉट एवर इट इज़ कि तुम्हें आज सही लग रहा है तुम करके देखो एक बार। क्योंकि तुम अपने लाइफ में एज में जितना अर्ली होते हो ना उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जितना जितना तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी तुम एक्सपेरिमेंट कम करते जाओगे, उतना टाइम नहीं होगा तुम्हारे पास। सो नाउ दैट यू आर वेरी यंग, यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स, इट्स नॉट अ इश्यू, तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करके देखो। चला तो बढ़िया है, नहीं चला तो किसी को नहीं पता, और किसी को नहीं पता होता कि तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली क्या चीज़ चलेगी और क्या नहीं चलेगी। सो ऑलवेज कीप ट्राइंग, डोंट स्किप ऑन ट्राइंग। कभी भी क्वेश्चन मत करो कि मैं ये करूँ या ना करूँ, या मैं ये पढूँ या ना पढूँ, या मैं कुछ नई चीज़ सीखूँ या ना सीखूँ। हमेशा करके देखो एक बार। यू नेवर नो ना हाउ द थिंग्स विल वर्क आउट। पता नहीं ये 10 साल बाद तुम्हें चीज़ काम में आएगी जो तुम आज कर रहे हो। यू विल नेवर नो। लाइक डीएसए के 4-6 लेक्चर के बाद डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कभी ना करी, कोई नहीं, करो करो डेली डीएसए। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। मेन सी मेन हैप्पी, यस लेट्स गो। इज इट स्टिल वर्थ लर्निंग डीएसए एंड गिविंग सो मच टाइम इन लर्निंग? देखो भाई, मेरे को तो मज़ा आ रहा है इन द एआई। हाँ बड़ी, इट्स अप टू यू। अब मैं क्या बताऊँ, मतलब तुम लोग ये एक बात को समझ लो बिली, कि एआई इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ योर थॉट्स। इट्स अ एक्सटेंशन in such a way it makes very less mistakes for you. So if you know x, it can give you x square, it cannot give you xyz or something new. ओके, सो सपोज कोई बंदा है जिसको प्रोग्रामिंग ही नहीं पता, वो डीएसए का क्वेश्चन एआई का यूज करके सॉल्व कर पाएगा क्या? ये चीज समझ लो तुम, वो नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई यू एटलीस्ट हैव टू नो द थिंग्स टू गेट इट ड्राइविंग। भैया मैं बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन और डीपी नहीं सीख पाता हूँ यार। सेम सेम, ये जो तीन तुमने क्वेश्चन टाइप्स बोले हैं ना, वो भी मैं खुद मैं खुद जूझा हूँ उससे भाई। मैंने उसको अभी स्किप कर रखा है, मैंने भी नहीं किया है। गुरुजी। यार अब पता नहीं तुम सार्केज़म में बोल रहे हो या एक्चुअल में बोल रहे हो। आई डोंट नो हाउ टू लर्न। मैं फिगर आउट करूंगा और मैं तुम लोगों को भी बताऊंगा कि अपने जैसे नॉर्मल लोग कैसे ये बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, डीपी कर सकते हैं। मैंने भी डीपी ट्राई किया, बट एक दो क्वेश्चन करने के बाद मेरे को समझा अब नहीं कर पाएंगे इसको। रिकर्जन भी मैंने किया। रिकर्जन मैंने ग्राफ वगैरह में, जहाँ जहाँ मैंने डीएफएस में रिकर्जन यूज़ होता तब मैंने बहुत अच्छे से रिकर्जन यूज़ किया। लेकिन जब रिकर्जन की प्रॉब्लम सॉल्व कर, व्हेन आई वाज सॉल्विंग ओनली रिकर्जन प्रॉब्लम, देन आई वाज रियली स्टक इन दैट कंसेप्ट, सो आई स्किप्ड ऑन दैट। फिर क्या करूँ भैया, मैं जॉब कैसे मिलेगी, मेरा 4th ईयर स्टार्ट होने वाला है। यार 3 चैप्टर से थोड़ी ना तुम्हारा जॉब रुकने वाला है पार्थ। हे पार्थ, आंखें खोलो। रियल में बोल रहा हूँ, यू गॉट मी देयर, ओ नाइस। नाइस थिंग। अब बाकी चीज़ों पे फोकस करो, डीपी वगैरह के बेसिक सिंपल, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चंस कर लो। मतलब ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर ने सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया रिकर्जन में, जैसे फैक्टोरियल वगैरह, ये सब बेसिक क्वेश्चंस है। तो वो तुम कर लो। रिकर्जन में बेस कंडीशन पता होनी चाहिए कि कब वो रिकर्जन ब्रेक होगा। और ये मतलब देयर विल बी ऑलवेज लेवल्स ऑफ क्वेश्चन, तो बेसिक एकदम सिंपल वाले एक एक दो दो प्रॉब्लम कर लो। उतना ही समझ लो, उतना ही टारगेट रखो अपने लिए। जब तुम्हें ना एक कोई चीज़ मुश्किल जा रही है ना,
हम मुश्किल क्यों जाती है कि हम एकदम दूर का सोचते हैं कि यार ये भी है वो भी है, तो एकदम छोटा टारगेट रखो। दो ही क्वेश्चन कर लो हर एक टॉपिक में, तो तुम्हें 100% कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन 20% तो कॉन्फिडेंस आएगा। जीरो से तो अच्छा ही है वो, तो उतना ही कर लो थोड़ा सा। हाँ, आएगा देवा। लेट मी लेट मी अपडेट माई जेसन, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था। इसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आने वाला था। आई सेव दिस, आई गो टू, कहाँ गए ओबीएस, आई रिफ्रेश दिस एंड यहाँ पे रिफ्रेश, यस, नाउ दिस शुड वर्क। जो ऊपर स्ट्रिप दिख रहा है ये अपडेट हो जाएगा। मस्त है ना ये, मस्त मज़ा आया मेरे को तो इसमें। ये सब तो आता है भैया, पर एक लॉजिक सोचने वाली बात होती है। जैसे मुझे कोई आरे का कैसे भी क्वेश्चन दो, एटलीस्ट मैं अप्रोच बिल्ड कर सकता हूँ। बस रिकर्जन रात रटने जैसा नहीं, नहीं, नहीं यार। देखो रिकर्जन का जो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन रिकर्जन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बेस कंडीशन है। तुम बेस कंडीशन समझ लो, ठीक है, कि जब तुम्हारा रिकर्जन ब्रेक होगा, सो इट ब्रेक्स द रिकर्जन। ये चीज़ ये चीज़ है ना, एक बार समझ लो कि ये हर एक क्वेश्चन में कैसे चेंज होता है। तो एक दो क्वेश्चन में बस बेस कंडीशन ये समझने की कोशिश कर लो कि कैसे है, उसके बाद रिकर्जन बिल्ड करने का सोचना। और मेरे टीचर ने मेरे को ये बताया था, मैंने भी सेम ही क्वेश्चन पूछा, तो मेरे को समझ में नहीं आते कि मैं कब सोचना बंद करूँ रिकर्जन में, मतलब कहाँ पे क्या होता है। उसने उसने मेरे को बोला स्टार्ट ऑन योर फर्स्ट थॉट। टीचर ने बोला स्टार्ट ऑन योर फर्स्ट थॉट, ज़्यादा डीप में मत सोचना। रिकर्जन में डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से सोच के उसको करना है और बाकी सब अपने आप हो जाता है, ऐसे मेरे टीचर ने बोला। मे बी इट कैन हेल्प यू। बस खो जाता हूँ स्ट्रीम में, एन्चेंटेड फुल। नाइस, क्या क्वालिटी है। लोग नहीं समझेंगे। समझेंगे समझेंगे, सब लोग समझेंगे, पूरा इंडिया समझेगा एक दिन। नाम भी वैसा ही है, पार्थ शर्मा। भैया जॉब फिर किस सेक्टर में लूँ, डीएसए के ये टॉपिक्स को नहीं रहे और डेवलपमेंट अच्छे से आते ही नहीं। देखो पार्थ, तुम्हें आंसर करने में कितना ये है, मस्त कूल सा लग रहा है। देखो पार्थ, ए आई, ए व्हाट द फक, ओ इट्स फिल्टरिंग ऑन, ओ फक। हे पार्थ, मैंने गलती कर दी। I marked this as solved and then there was this bus routes. Uh, just a second, Parth. ऑटोमेशन बहुत ही अच्छे से चल रहा है, इतने अच्छे से नहीं चलना चाहिए था। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? I mistakenly marked two questions as solved here. Please undo that, please. uh, यार जॉब तुम्हें मिल जाएगी, उसमें तुम्हारा प्रोजेक्ट किस चीज़ पे है? मोस्टली तुम्हारा प्रोजेक्ट जिस टाइप पे होता है ना, मतलब जो टेक्नोलॉजी और जिन सब चीज़ों पे होता है ना, उसके बेसिस पे ही तुम्हें जॉब मिलता है। तो ज़्यादा सोचो नहीं निगेटिव, जो तुमने किया है उसको ही अच्छे से करो। सारे चीज़ों में एक्सपर्ट बन पाना मुश्किल होता है, ठीक है, इतना मत सोचो। तुमने जितना ये किया है उतने पे ही फोकस करो, प्रोजेक्ट पे फोकस करो। कौन से सेक्टर में जॉब मिलेगा ये अभी तुम्हारे हाथ में नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, फ्रेशर के हाथ में। सारे ही इंटरव्यू में बैठो, सारे ही इंटरव्यू दो, जॉब मिलने के बाद सोचो कि तुम्हें क्या करना है। मेरी तरह ही ये बंदा तो बस हाँ, सब लोग ही सोचते हैं यार, थिंकिंग ओवर थिंकिंग सब लोग ही करते हैं। ये लो भाई पानी मेरी तरफ से। मैंने एक टू डू लिस्ट बनाई है क्लॉड यूज़ करके। यार
तुम लोग है ना थोड़ा सा एआई का इस्तेमाल कम करो। क्लॉड ने बना दिया, बट तुमने क्या बनाया, अब कैसे पता चलेगा? All set I have moved those two questions back to attempting, so they'll show you in the queue again. Shortest path in a grid. ठीक है, ये क्वेश्चन हम अपना हो गया। ओह, नाउ दिस हार्ड हार्ड क्वेश्चन करे क्या भाई अभी? क्या बोलती पब्लिक, हार्ड क्वेश्चन करे या ये करे? मिनिमम जम्प्स टू रीच होम, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। मिनिमम जम्प्स टू रीच होम। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने समझा। टू डू लिस्ट से तुम्हें क्या मिलेगा, मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। टू डू लिस्ट इज़ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट। थोड़ा सा कुछ और अच्छा बना लो टू डू लिस्ट के अलावा। कुछ कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो कुछ मैनेजमेंट वैनेजमेंट इन सब चीज़ों में होता है, तो वो कुछ ट्राई कर सकते हो। रेज्यूमे को बेटर बनाओ, और थोड़ा सा एजेंट वेजेंट भी फेल लो, क्योंकि रिज्यूमे तुम्हारा एआई फर्स्ट वाला दिखेगा ना तो अच्छा होगा। जैसे कि यू कैन क्रिएट लैंग चेन से कोई एजेंट बना के देख लो बेसिक सा, या ऑटोमेशंस डाल लो, एजेंटिक एआई समथिंग। ये मेरे को बंद करना है, आप चेक करो यूआरएल पर। सेंड मी द यूआरएल। यूआरएल इस चैट में नहीं आता पार्थ, अगर तुमने यहाँ पे शेयर किया होगा, क्योंकि यूट्यूब डजंट अलाउ टू शेयर यूआरएल्स। यू कैन शेयर इट ऑन डिस्कॉर्ड और लिंक्डइन और इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी तुम्हें शेयर करना हो मेरे को शेयर कर लो, मैं भी देख लूँगा। मैं भी यही सोचता हूँ, क्या ही हो जाएगा। यस, इफ सर्वाइवल पे ही बात आ जाएगी तो है चीज़ है। यस, लेकिन याद रहेगा क्या जर्नी थी। मेरा तो ये पीओवी है। Yes, your POV and Parth's POV would be different. You both are in different situation. You are at the starting point and he is at the ending point of that cycle, Atharva. Now he has to think very seriously, like about jobs and all. So minimum jumps to reach home. ये किस टाइप का क्वेश्चन है? Is this also a similar question or something new? मेरे को नींद आ रहा है यार आज जल्दी। मैंने सोचा था मैं आज बहुत देर तक स्ट्रीम करूंगा, लेकिन अभी से नींद आ रहा है। बड़ा बड़ा गेम गीन माहौल हो गया। गमगीन माहौल हो गया। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, गमगीन माहौल हो गया। बड़ी अजीब सी शांति है। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आई शुड हैव अ मीम्स ना बीच बीच में टू एक्सप्रेस द इमोशंस। इज देयर एनी क्रोम एक्सटेंशन फॉर मीम्स? इज देयर एनी क्रोम extension for memes? Oh, there are. इंडियन मीम्स चाहिए अपने को।
कहाँ जा रहा हूँ मैं? डिस्कॉर्ड लिंक एक्सपायर हो गया. Let me paste this again. Here is the Discord link, bro. I have replaced the pin chat. Yeah, इसने अथर्व ने भी शेयर किया है. Yeah, अथर्व can share the links, no? Because अथर्व is a moderator. Oh, अथर्व has superpowers. मैं भी नहीं शेयर कर सकता ऐसे. I have shared it, bro. ए मैंने वेलकम एंड रूल्स में डाला था यार. यहाँ पे डालना था. Now there is cycle detection that I wanted to do. Node pair, BFS, queue pair, start, add. Cycle detection looks simple. मेरे में तो करते हैं लोग, सब करते हैं. मैं भी बंद कर देता हूँ. ओके, मैंने समझा. It is same broad pattern, single source path, but it introduces one important new concept, BFS with state. But backward is allowed. Stateful BFS. Oh shit. Let's read this question. Minimum jumps to reach home. A certain bug's home is on the x-axis at position x. Help them get there from position 0. The bug jumps according to following rules. भाई मेरे को नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा. Should I continue or should I stop? पार्थ, तुम एक बार लिंक शेयर कर लो क्योंकि मेरे को नींद आ रहा है. कॉफ़ी पीने के बाद भी नींद आ रहा है तो आई शुड नॉट इग्नोर दिस. आई सेंट लिंक कर दिया जनरल चैट पे. ओके. ये देखते ही समझ में आ रहा है क्लॉड ने बनाया हुआ यूआई. ना ब्रो, nobody will entertain you on this, to be honest. कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें. आप थीम चेंज कर सकते हो. लोकल स्टोरेज यूज़ कर रहा है ये डेटा को स्टोर करने के लिए. नहीं,
पार्थ अगर तुम ये एप्लीकेशन दिखाओगे ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं है. इट जस्ट डजंट मीन एनीथिंग. तुम्हारा एप्लीकेशन शुड रिप्रेजेंट सम डिज़ाइन पैटर्न्स कि तुमने डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए हैं. ठीक है. योर एप्लीकेशन शुड शो दैट यू हैव अ गुड आइडिया अबाउट database because it's a web application. That's why I'm telling you you should have a knowledge of database. You should have normalized tables, use some kind of normalization on the database tables. मतलब तुमने प्रॉपर अप्रोच फॉलो किया है टीम में, एक इंजीनियरिंग टीम में, एक इंडस्ट्री में, कंपनी में कैसे चीज़ें फॉलो होती है. दे फर्स्ट बिल्ड डेटाबेसेस, देन उसके बाद मतलब ई आर डायग्राम बनते हैं, फिर डेटाबेस बनते हैं. ठीक है. देन बैकएंड बनता है, एपीआईज बनते हैं, रिलेशंस बनते हैं उस पर. हाँ. डिज़ाइन पैटर्न्स फॉलो होते हैं अलग अलग, कार्डिनलिटी दैट ऑल एंड ऑल. एंड देन वो एपीआई फ्रंट एंड में कंज्यूम होता है, फ्रंट एंड कंज्यूम्स दैट एपीआई एंड देन वी सी अ फाइनल गुड पिक्चर. दिस इज नथिंग. Sorry, if I'm being harsh. Anybody can create this in like 10 minutes using AI. ये कहीं पे भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, कुछ एपीआई कॉल नहीं है, देर इज़ नो ऑथेंटिकेशन, नो लॉगिन. इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से सोचो वो क्या पूछेगा तुम्हें इसमें. इट्स जस्ट दैट यू आर टेकिंग अ वेरी बिग शॉर्टकट. अगर ये तुम्हारे रिज्यूमे का मेन प्रोजेक्ट है तो इट्स अ इशू. इट शुड नॉट बी अ मेन प्रोजेक्ट ऑफ योर रिज्यूमे. तुम कोई भी कॉलेज का प्रोजेक्ट उठा लो. सो देर आर गिव मी आइडियाज फॉर कॉलेज प्रोजेक्ट एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट. कोई भी एक इसमें से उठा लो. नाउ देर इज ए आई पावर्ड एंड ऑल दिस थिंग. सो तुम थोड़ा सा एक ए आई एजेंट भी डाल सकते हो उसमें. तुम्हें अच्छा खासा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पता है. टास्क मैनेजर, हाँ ये तुम्हारा वैसा है तो इसको टास्क मैनेजर बनाओ. लेकिन टास्क मैनेजर इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. सो सी दे हैव गिवन दिस. ये टास्क मैनेजर एक्चुअल इसमें यूज होता है. मतलब इट्स अ डेवऑप्स बोर्ड. ठीक है. गिटहब में भी अगर तुम जाओगे तो देर इज अ बोर्ड. लाइक दिस. ऐसा कुछ बना सकते हो जो इसमें बोला है, वही तुम्हारा जो आइडिया है उसको एक्सटेंड एक्सटेंड करके. लाइक दिस. इन्होंने फिग्मा डिज़ाइन दे रखा है. आप इस पे फिर से हिट करोगे आपका डेटा स्टोर रहेगा. नहीं यार, मैं बता रहा हूँ इट्स नॉट वर्थ इट ब्रो. एपीआई कॉल्स होना चाहिए, एपीआई बैकएंड फर्स्ट, एआई थोड़ा यूज़ करो, फ्रंट एंड बनाओ इसमें. ये कुछ भी नहीं है तुम्हारा. अगर ये उसमें दिखा रहे हो तो मत दिखाओ. अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू शो दिस टू एन इंटरव्यूअर, डोंट शो दिस. ऐसा प्रोजेक्ट लोग को प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं, नॉट अ कॉलेज ईयर. कॉलेज का तुम्हारा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट. देखो यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस, यू नो. ये ड्रैग एंड ड्रॉप है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. एआई है ही तुम्हारे पास तो तुम यूज कर सकते हो ये प्रोजेक्ट. और क्या दिया, स्टूडेंट डैशबोर्ड, एलएमएस एप्लीकेशन. स्टूडेंट डैशबोर्ड एलएमएस एप्लीकेशन ये क्या है. डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम. अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तुम्हारे कोर्स का डैशबोर्ड है. पिक एनी वन प्रॉब्लम. इफ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन योर डे टू डे लाइफ, ट्राई टू फिक्स दैट, solve that problem with something. Yeah, any MERN stack project, any full stack projects I would say. Don't abide yourself by MERN stack. तुम्हें जो भी टेक्नोलॉजी आती हो फ्रंट एंड बैक एंड, उसमें एक प्रोजेक्ट पूरा बनाओ. ई कॉमर्स तो एक ऑलवेज ईजियर चॉइस टू बिल्ड.
तो ये भी बना सकते हो। तुम्हें अच्छे से पता है पूरा प्रोजेक्ट जब हमने बनाया था, हमने स्प्रिंग बूट जावा में बनाया था, तो हम 2-3 दिन हमारा डिस्कशन ही चला कि कौन कौन से एंटिटीज रहेंगे, मतलब कौन कौन से टेबल्स रहेंगे, उसमें क्या रिलेशन होगा, वन टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू मेनी, उसमें हम कंफ्यूज हो गए थे बहुत टाइम तक। उसके बाद एपीआईज बने, ऑथेंटिकेशन बनाया, और फिर उसको फ्रंट एंड में कंज्यूम किया। भैया कितना टाइम लग जाएगा इस पे आपके अकॉर्डिंग? खुद से करने में तो 15 दिन लगता था, क्योंकि मेरे को 15 दिन लगे थे, लेकिन अभी एआई है तो मे बी वीक इज इनफ। समझ के करना है तुम्हें, बस करने के लिए नहीं करना है। ये जैसे टू डू ऐप बनाया है ना, ये पूरा प्रॉम्प्ट दे के बनाया। मैं देख के बता सकता हूँ कि पूरा प्रॉम्प्ट दे के बनाया हुआ एप्लीकेशन, तुमने खुद से कुछ नहीं किया इसमें। You don't even know ki how this date is being selected over here. You don't even know how this calendar is being populated over here. You don't even know how these months are getting populated. February और जून ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा एपीआई यूज़ किया है इसमें, तुम्हें कुछ नहीं पता है तुम्हें इसके बारे में। इट्स अ इट्स अ प्रॉम्प्ट स्नॉप। सीखने से लेके देखो, जब तुम ऑन द गो बनाओ ना, तब अपने आप सीख जाओगे ना। तुम बोल रहे हो तुमने ये टू डू ऐप बनाया है, तो तुम्हें आना चाहिए थोड़ी बहुत चीज़ें, जिसमें यूआई कम है, ऐसा कोई प्रोजेक्ट उठा लो, क्योंकि तुम्हारा काम यूआई बनाना, इतना ज़्यादा मत शो करो। पोर्टफोलियो वेबसाइट या ऐसे कुछ पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हो तुम्हारा, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐप, ये बहुत ही बेसिक इंटरमीडिएट, चैट मैसेजिंग। हाँ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इट्स अ गुड प्रोजेक्ट इफ़ यू हैव आइडिया अबाउट हाउ इन्वेंट्री इज बिंग मैनेज्ड, या कोई भी एक स्टूडेंट मैनेजमेंट और ऐसा कुछ, ये सब चीज़ें तुम बना सकते हो। इसमें इंटरव्यूअर को भी है चीज़ें पूछने के लिए, कि मैं कितना कुछ पूछ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता हूँ कि तुमने कैसे इम्प्लीमेंट किया, तुम इसमें एक्सपायरी कैसे चेक कर पा रहे हो, तुम्हारे पास एक्सपायरेबल आइटम्स है या नहीं है इसमें, ठीक है। सपोज कोई इसका क्वांटिटी गलत मार्क हुआ तो तुम कैसे करोगे। ऑल दिस थिंग्स, नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट हियर, लाइक दिस। इट्स अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, तो ये भी एक अच्छे आइडिया। बहुत सारे आइडियाज़ है यार, अभी एआई है तुम्हारे पास, आइडियाज़ की तो कमी नहीं है। ये मत बनाओ बस। अच्छा हुआ तुमने ये मेरे को दिखाया, बदलो इसे जल्द से जल्द। एआई वाला कोड तो समझ ही नहीं आता है, तो फिर भाई तो कैसे तुम बनोगे इंजीनियर? भैया इसके लिए मुझे कोर्स ले लेना चाहिए क्या, यूडेमी पर, फेमस फुल स्टैक का कोर्स? नहीं यार। हम्म। मुझे बताओ तुम्हें कौन सी टेक्नोलॉजी आती है पहले। देखो मैं तुम्हारा रास्ता क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चंस पूछ के। टेल मी, आंसर मी विच फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यू नो फर्स्ट। आंसर मी दिस। तुम्हें कौन सी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी आती है? एच टी एम एल, सी एस एस, जी एस थोड़ी बहुत, और रिएक्ट थोड़ी बहुत, ठीक है। रिएक्ट रिएक्ट हम फिक्स कर रहे हैं अभी, तो तुम्हारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी होगी रिएक्ट। टेक इज रिएक्ट। रिएक्ट में कुछ भी नहीं लगता है, रिएक्ट में एक ही कंसेप्ट, दो कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, तुम 80% रिएक्ट पे काम कर सकते हो। वन स्टेट, स्टेट लिखने के लिए तुम्हें उसमें लिखना पड़ता है कि नोट कहाँ है अपना। एक तो तुम्हें उसमें रिएक्ट में दो ही चीज़ें चाहिए, एक चाहिए स्टेट, ठीक है, रिएक्ट स्टेट। रिएक्ट स्टेट में जो भी तुम स्टेट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल क्या सेट करना है, सेट एज, ठीक है, और सेट एज कर लिया तुमने यहाँ पे, और इज इक्वल टू
रिएक्ट डॉट यूज स्टेट, ठीक है, और पहले एज दे दिया 0। और जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन रन होने वाला है तो तुम क्या करोगे, यूज इफेक्ट यूज करोगे उसमें, कि जब भी तुम्हारा एप्लीकेशन रेंडर होगा तो तुम उसमें यूज इफेक्ट यूज करोगे, तो ये तब रेंडर होगा। तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कि डिपेंडेंसी नल, और यहाँ पे जाके ये सेट एज, फॉर एग्जांपल तुम्हारी एज होगी 20, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ 20, ठीक है। इतना अगर तुम्हें आता है रिएक्ट में, तुम्हारा 80% काम हो जाएगा रिएक्ट में। ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट जो रिएक्ट है हमेशा इस स्टेट पे नज़र रख के देखता रहता है, मतलब जब भी चेंज हो गया वो पूरा उसके अराउंड जो भी है वो चेंज कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़, और यूज इफेक्ट जब भी तुम्हारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है तो वो होगा, वो इसके अंदर जो भी लिखा है वो रेंडर होगा। बस इतने में तुम्हारा 80% रिएक्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाउ टेल मी व्हाट यू नो इन द बैक एंड। बाकी मैं गेट के लिए प्रिपेयर करता हूँ। बैकएंड टेक्नोलॉजी बताओ कि क्या है, तो मैं तुम्हें एकदम अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट बता दूंगा कि तुम ये करो। ऑब्जेक्ट इन मोशन टाइप, हाँ। बाकी मैं गेट की तैयारी करता हूँ, ठीक है। मोंगोडीबी का थोड़ा बहुत आइडिया, हाँ ठीक है। मोंगोडीबी हम डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बैकएंड टेक्नोलॉजी क्या पता है अभी, ये बताओ मेरे को। नोड आता है तुम्हें, नोड आता है, डॉट नेट आता है, जावा आता है, क्या आता है तुम्हें, जांगो, पाइथन वगैरह, व्हाट यू नो। ऑब्जेक्ट एड्रेस, सॉरी, ओके। बताओ पार, जल्दी जल्दी बताओ। मेरे इसमें लो लेटेंसी ही सेट किया हुआ है तो आ, कुछ भी नहीं आता भैया। जावास्क्रिप्ट आता है ना तुम्हें, यू नो जावास्क्रिप्ट, यू नो जावास्क्रिप्ट दैट यू सेट। ओके, दैट्स इनफ। तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है तो जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी रन होता है, उसके लिए वो नोड एनवायरनमेंट के अंदर रन होता है, ठीक है। तो यू कैन यूज नोड जेएस फॉर दैट। तो सिंपली तुम्हारा टेक्स्ट स्टैक सिंपल बन गया। देखो कहाँ, मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा। देखो तुम्हारे लिए फ्रंट एंड का टेक्नोलॉजी बन गया रिएक्ट, रिएक्ट प्लस नोड जेएस यूज करना, नोड जेएस यूज करना, और प्लस यूज करना मोंगो डीबी। इसमें तुम प्रोजेक्ट बना लो अपना, ठीक है। इसमें तुम्हें जावास्क्रिप्ट आता है, ठीक है, वो तुम यूज कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं लगता नोड जेएस के लिए, और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में भी यूज़ होता है, और प्लस रिएक्ट के जो भी बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने बताया, तो तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें। तो ये टेक्नोलॉजी तुम नोट कर लो और इसमें प्रोजेक्ट बनाओ, और एकदम ही सिंपल सा कोई प्रोजेक्ट बना लो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ फैंसी मत बनाओ। उसमें एक लैंडिंग पेज हो, ठीक है, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट लो जिसमें एक अच्छा सा लैंडिंग पेज हो, ठीक है, लैंडिंग पेज हो, और इसके अंदर तुम एक दो चीज़ें हो जिससे एपीआई कॉल करना पड़े, ठीक है, एपीआई कॉल हो, एपीआई कॉल हो और नेस्टेड हो, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन हो दोनों में। ऐसा कुछ सिंपल सा बना लो विच इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। और ये सब समझ आने के बाद तुम इसको ऑथेंटिकेशन के पीछे डाल दो, मतलब लॉगिन, लॉगिन बना लो सबसे लास्ट में। अगर ये सब हो जाएगा तो देन यू आर डन ब्रो। इसके ऊपर तुम्हें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। नोड जेएस का तुम चार्ट जीपीटी को सेटअप मांग लो कि कैसे करना। नोड जेएस सेटअप करना बहुत आसान है, तुम्हें एक्सप्रेस यूज करना पड़ेगा,
बेसिक नोड जेएस एक्सप्रेस, तो तुम्हें ये हो जाएगा। सीखू कहाँ से भैया? यार एक चैट जीपीटी का इंस्टेंस खोलो, जो मैंने बताया ना, रिएक्ट, गो टू चैट जीपीटी एंड आस्क कि टेक योर ओन कंडीशन, कि भाई सिचुएशन जो भी है, कि भाई आई नो रिएक्ट लिटिल बिट, आई नो नोट जावास्क्रिप्ट लिटिल बिट, एंड आई हैव अ आइडिया ऑफ मोंगोडीबी. Based on that, I want to create a final year project, but I don't have much time for that. So can you guide me step by step in the easiest way कि how would I do this project? Which project can I do? So वो तुम्हें लिस्ट ऑफ आइडियाज देगा, जो तुम्हें सही लगेगा वो पिक करो. स्टार्ट फ्रॉम बैकएंड फर्स्ट. लैंडिंग पेज एआई से बनाऊं, ये तो सोच आना ही नहीं चाहिए. पहले बैकएंड का सोचो कि बैकएंड में कैसे बनाऊं. बैकएंड बनाओ, ठीक है. उसको पूछो कि कौन सा प्रोजेक्ट है, जो भी तुमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैनेजमेंट ये कर लिया, तो उसको पूछो कि इसमें मुझे कौन कौन से एपीआईज बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से एपीआईज लगेंगे. इट कैन गिव यू 10 एपीआईज. उसको बोलो कि मैं 10 एपीआईज बनाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, गिव मी मोस्ट इफिशिएंट वे कि इंटरव्यूअर भी खुश हो जाए, और दो तीन ही मेरे को एपीआई बनाने से काम चल जाएगा, ऐसा कुछ. तो इट कैन लिस्ट यू की 3-4 गुड एपीआईज, तो वो एपीआईज पिक करो. फिर उसको पूछो क्या क्या एंटिटीज चाहिए मेरे को, कि कौन कौन से एंटिटीज मेरे को बनाने पड़ेंगे. तो उसको पूछो नोड जेएस और मोंगोडीबी का कनेक्शन कैसे करना है मेरे को बताओ, मैं खुद करता हूँ. उसको कोड मत, उससे कोड मत लिखवाओ, उसको बोलो मेरे को बताओ. वो जो भी लिखा है बस हाथ से फिर से लिखो, कोई इशू नहीं है. जो भी दे रहा है वो हाथ से लिखो. एक बार सेटअप कर लो तुम्हारा एंड टू एंड नोड जेएस का. रिएक्ट अभी पिक्चर में नहीं है, पहले नोड जेएस एक्सप्रेस और मोंगोडीबी का सेटअप कर लो, और ट्राई टू राइट डमी एपीआई, एकदम ही डमी एपीआई, जो तुम्हें बस एक जेसन रिटर्न कर रहा हो. उसके बाद बिल्ड करो एक एक एक, एक चीज. धीरे धीरे ऐसे लर्न करते हैं. तुम लोग क्या कर रहे हो, पहले ही एआई स्लॉप से अच्छा मैं ये बना देता हूँ, एकदम ही रॉकेट बना देता हूँ, लेकिन बेंचो रॉकेट के अंदर क्या है हमें पता ही नहीं है. और इच्छा भी नहीं है कि लोग इतना सब बढ़िया बढ़िया बना रहे हैं, मैं बेसिक चीज़ों पे टाइम ना डालूं, ऐसा लग रहा है. अरे उससे कोड नहीं लूँ ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि उस कोड एज इट इज कॉपी मत करो, या उससे कोड मत लिखवाओ जैसे तुमने इसमें किया है टू डू ऐप में. तुम उसको बोलो कि मेरे को सेटअप करना है, जितना कोड तुम्हें समझ में आ रहा है ना उतने लेवल तक ही उसका कोड उससे देखो, और वो कोड कॉपी भी मत करो, अपने कीबोर्ड से हाथ से लिखो कंपाइलर में. जब तक तुम कोड अपने हाथ के नीचे से नहीं जाएगा ना, वो इंसान नहीं सीखता. भले ही उसने दिया एक कोई फंक्शन लिख के दिया कि दिस इज अ फंक्शन, तुम लिखो वो अपने हाथ से, उसको देख के लिखो, कोई इशू नहीं है. पहले सेटअप कर लो नोड जेएस का, नोड जेएस एक्सप्रेस. ये जो मैंने प्रॉम्प्ट बताया तुमने, मैंने उसको तुम एक बार वही पार्ट एक बार फिर से सुनना जो मैंने बोला है, और वैसा प्रॉम्प्ट देके देखो उसको, हो जाएगा. आई होप तुम समझ गए होंगे, मैंने बहुत बोला है. अच्छा भाई, आपकी बात समझ गया मैं. मुझे सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाना है, सीख सीख कर. यस. और एकदम बड़ी चीज़ से मत चालू करो, छोटे छोटे चीज़ से. जैसे अगर तुम मेरी पहली स्ट्रीम, जब मैंने पहला स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाया, मैंने बस एक कंट्रोलर बना के उस एपीआई में डमी एपीआई मतलब एक जेसन ऑब्जेक्ट ये किया, और मैंने चेक किया कि ये कैसे चल रहा है. उसके बाद आई बिल्ट ऑन दैट, ऑन टॉप ऑफ दैट. हाँ, यस, करेक्ट. खुद लिख कर जो मैं इंटरव्यूअर को समझा सकूँ. यस. तुम्हें वो पता होना चाहिए कि नोड एक्सप्रेस कैसे सेटअप करना है, ठीक है, कैसे वो कनेक्ट होता है डेटाबेस के साथ, कैसे तुम एपीआई लिखते हो इसमें. एपीआई तो तुम्हें बाद में वो सब एआई लिख के दे देगा, लेकिन तुम्हें वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए. हाँ, ये कैसे हुआ, वो कैसे. यस. एआई को यूज़ करो एज अ लर्निंग ऑन स्टेरॉइड्स, यू नो, कि उसको ट्रेन करके रखो, और तुम्हें कैसे उसको सीखने के लिए मदद कर लो. मैं हिंदी के स्टेटमेंट जल्दी जल्दी नहीं बना सकता, सॉरी फॉर दैट. ठीक है. बैक टू द क्वेश्चन यार.
ट्यूशन टीचर की तरह, यस। एक सेकंड, मेरे इसको थोड़ा सा चेंज करने दो। दिस, थैंक यू भैया। यस, थैंक यू मत बोलो, पहले ये बना लो भाई। मेरे को तुम्हारी सिचुएशन देख के प्रेशर आ गया। यार ये पेन को क्यों, क्या हो जाता है भाई? इतनी देर तक अच्छा चल रहा था, स्कीम में आ गया। ओके, इट वर्कड। मैं जोश में आ गया हूँ अब। क्रांति होगी। ओ भाई। क्रांति करो भाई। आज से वेब डेव भी ध्यान देगा, देना होगा। यस। तुम भी सुन रहे थे शायद, प्याज कचौरी नाम है भाई इसका। प्याज कचौरी। पार्थ भाई कौन सी ईयर में हो आप? जस्ट वांटेड टू नो। ही इज इन थर्ड ईयर। यार एकदम से 15 लाइक हो गए, नाइस यार। ओ भाई, आप आपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई लीड कोड का। आ, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं एक बार। मिनिमम जंप टू रीच होम, ठीक है। A certain bug's home is on the x-axis. Is on the x-axis. Help them to get the position 0. अच्छा, this is 0. The bug jumps according to the following rules. It can jump exactly A positions forward to the right. It can jump exactly B positions. Okay, for example यहाँ पे है, यहाँ से A पोजीशन आगे जा सकता है या B पोजीशन पीछे आ सकता है, ठीक है। इट कैन नॉट जंप बैकवर्ड ट्वाइस, अच्छा दो बार जंप अलाउड नहीं है। इट कैन नॉट जंप टू एनी फॉरबिडन पोजीशन, ओके देयर आर सम फॉरबिडन पोजीशंस। इट कैन नॉट जंप टू हियर। द बग में जंप फॉरवर्ड बियॉन्ड इट्स होम, बट इट कैन नॉट जंप टू पोजीशन नंबर्ड विद द नेगेटिव, अच्छा इट कैन नॉट गो हियर, इट्स नॉट अलाउड। Given an array of integers forbidden, where forbidden I means that the bug cannot jump to the position forbidden I, and integers a, b and x. Return the minimum number of jumps needed for the bug to reach home. अच्छा, मेरे को ये समझ में आ गया है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। Yeah, understood. If there is no possible sequences of jumps that lands the bug on position x, return -1. ओके, माइंड क्लैरिटी मिल गई मुझे, क्या करना है कोई ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस सीखना है। यस, दैट्स नाइस। मैंने चिल्लाने का फ़ायदा हो गया मतलब। चलो बढ़िया, काम पे लग जाओ और मेरे को दिखाओ प्रोजेक्ट तुम क्या बना रहे हो बनाने के बाद। ओके, आई अंडरस्टूड दिस। क्या करना है इसमें? फॉरबिडन इट्स लाइक अ वर्ड लिस्ट, इट्स अ वर्ड लैडर टाइप के क्वेश्चन की तरह है ये। दीज आर द फॉरबिडन पोजिशंस। A is क्या है? It can jump exactly A position. This many position it can jump forward. This many position it can jump backward.
and x equal to 9 is the home, बक्स होम. सो 9 पे आना है इसको. ठीक है. ठीक है. 3 jumps forward, so 0 to 3, and then 3 to 6, 6 to 9 will get the bug home. Forbidden. सो अपने को विजिटेड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजिटेड मार्क करने का कोई पॉइंट नहीं है. और क्यू, तो वी विल नीड अ क्यू, वी डोंट नीड अ फॉरबिडन. इट्स लाइक अ वर्ड लैडर, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ. या वर्ड्स लिस्ट में इसमें फॉरबिडन, अगर घर ही फॉरबिडन हो तो -1 रिटर्न करना होगा, जस्ट लाइक दिस. ठीक है. एंड सिनारियो में सोच रहा हूँ, जैसे इस केस में कंटेंट्स एंड वर्ड होगा तो रिटर्न 0 किया था हमने, तो दिस टाइम वी कैन रिटर्न दिस. ओके, आई गॉट एन आइडिया, अ रफ आइडिया. लेट मी स्टार्ट विद दिस. जो पहले मैसेज देख लेता हूँ. अच्छा, गुड. समझ पर 4th ईयर में ये आएगा. डन, ये आया. बताओ लेकिन. रीड द मिस चार्ट, न्यू लाइव स्ट्रीम्स ऊपर ऊपर भी हो सकती है. रीड द मिस चार्ट, न्यू लाइव स्ट्रीम्स ऊपर भी हो सकती है. अच्छा. मैंने कुछ मिस किया क्या? कर लोगे. भाई, वी बिलीव इन यू, वी विल ओवरकम. यस. पार्थ भाई कौन से ईयर में? मन की बात डेवलपर्स के साथ. मेरा 4th ईयर है. यस, बाकी मैंने पढ़ लिया. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द क्यू नाउ. I'll create a queue of integer over here, and it is queue u is equal to new array deck, array deck, क्योंकि array decks are faster. And then what we will add to this. So we have to add the int x to this. A starting position, a box home is on axis this, so there is this. So we will not add anything as of now. We have to convert this forbidden array into a list or a set. We can have a set of integer. हमने वर्ड लिस्ट में लिया था ना सेट, या सेट वर्ड ऐसे लिया था. सो इंटीजर, और इसको forbidden नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू न्यू हैच सेट, और एरे टू लिस्ट किया था ना. एरे टू लिस्ट था, क्या था ये? अच्छा, वर्ड लिस्ट हमने डायरेक्ट दिया था, बट दिस इज नॉट अ वर्ड लिस्ट. क्या होता है? एरे टू लिस्ट फॉरबिडन. ये सिंटैक्स सही है कि एरे टू लिस्ट होता है, एरेज टू लिस्ट होता है? एरेज एज लिस्ट होता है. एज लिस्ट. ठीक है. हमने फॉरबिडन्स का ये ले लिया, और इसमें हमें पहले तो ये चेक करना है कि दिस फॉरबिडन्स, फॉरबिडन्स नहीं लिखते, फॉरबिड लिखते, शॉर्ट लिखते ना. फॉरबिडन्स क्यों लिखे? फॉरबिड डॉट कंटेंट्स होम. तो ये बंदा कभी घर पहुंच ही नहीं पाएगा, इसका मतलब. तो विल रिटर्न -1 इन दिस केस. ठीक है. इफ नॉट, अपने को क्यू में क्या ऐड करना होगा? क्यू में शुड आई ऐड दी where, from where it will start. A equal to this. Output is 3 jumps forward 0. अच्छा, it's starting from 0, so we need to add q. Question में से help them to get from position x. Okay, it's saying position x, so we need to add q dot add 0. हम ऐड कर लेते.
ठीक है। देन अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इसमें कितने इसमें गया, ठीक है, नंबर ऑफ जंप। सो वी विल हैव इंट jump is equal to 0, and then while queue is not empty, queue is not empty, we will take this size, int size equal to a QUE अरे इसको साइड में रखो भाई जरा, QUE dot size, अरे क्या हो गया भाई, and then we will run the loop on this, int I equal to 0, I less than size I plus plus, ठीक है। एंड देन इसके अंदर इंट नोड और इंट करंट लेते हैं ना, करंट ज़्यादा सेंस बना रहा है नोड की जगह। सो क्यू विल पोल दिस एलिमेंट आउट, QUE डॉट पोल, ठीक है। एंड देन बेस्ड ऑन दिस अपने को ये करना है, अगर दिस करंट इज उसका घर इज इक्वल टू एक्स, देन भैया घर पे पहुंच गए, तो हम रिटर्न जंप, नंबर ऑफ जंप्स स्टिल हियर, रिटर्न नहीं, रिटर्न जंप्स मेक्स मोर सेंस, ओके। इफ नॉट अपने को आगे पीछे जाना है यहाँ पे, तो फॉर नेक्स्ट, अब अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए और पी। तुम लोग कुछ कुछ बोल रहे हो, मैं एक बार पढ़ता हूँ, एक बार मैं फ्लो में आ चुका हूँ, मेरे को ये नाउ हाउ कैन आई चेक ए और बी, मेरे को प्लस और ये करना है, तो इट वुड बी अ लूप, एंड उसने इट कैन जंप एग्जैक्टली ए पोजिशन फॉरवर्ड टू द राइट, एक बार ए होगा एक बार बी होगा, या तो बी होगा ए होगा, ए बी बी ऐसे नहीं होगा। हाँ, बिफोर दिस अगर नहीं है तो मेरे को चाहिए न्यू पोजीशन, सो इंट न्यू पोजीशन इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, करंट प्लस ए, ठीक है। देन आई हैव टू अगेन चेक इफ दिस न्यू पोजीशन इफ न्यू पोजीशन इज टारगेट, लेकिन लूप में हम कैसे कर पाएंगे इसको, लूप का मेरे को आइडिया नहीं आ रहा। हम लूप में क्या करेंगे भाई, एक बार मैं चार्ट पढ़ लेता हूँ, बहुत ज़्यादा चार्ट है कि कहाँ तक मैंने पढ़ा था, समझ पर फोर्थ ईयर, यस डन, रीड द मिस्ट ये पढ़ा है मैंने। मैक्स कितने लाइक गए थे अभी तक स्ट्रीम पे, आई गेस 22 23 20 लाइक्स, ओ रियली, मेरे को तो 19 लाइक्स ही दिख रहे हैं यार। पार्थ भाई को आज अलग नींद आई के लगता है, नींद नहीं आनी चाहिए, दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज ब्रदर, बहुत समय बाद आज मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ, जैसे मेरी जॉब लग गई। जॉब देखो, तुम एंड गोल के बारे में मत सोचो। म- महाराष्ट्र में एक संत होके गए, संत तुकाराम, वो हमेशा कहते कि भाई उनका एक अभंग है कि तुम फल के बारे में मत सोचो, कभी मत सोचो, प्रोसेस का मजा लेना है भाई, मजा, मजा आ गया भाई ये मजा मैं पूरे इंडिया को देना चाहता हूँ। बस नींद कल से गायब हो जाएगी, लेट्स गो, स्टार्ट द ग्राइंड ब्रदर, यू हैव गॉट दिस, यस। ये सुबह गेट प्रेप, शाम को डेवलपमेंट, और एक दो डीएसए की प्रॉब्लम कर लूंगा। विंटर सीजन भी आ रहा है, अभी तो बारिश का मौसम चालू हो गया, काम ही पूजा है, यस ब्रदर, बहुत ही बढ़िया बोला, काम ही धर्म है भाई अपना, कोड करना ही अपना धर्म है।
Let me ask this too. Am I on the right path, or there's some mistake here? You are on the correct BFS path, but there is few important mistakes before continuing. This does not create the correct forbidden set, because forbidden is an int array. Arrays as list treats the entire array as one object. अच्छा मैं बेसिक से मिस्टेक कर रहा हूँ इसमें. Okay, it's saying use this loop करो. This, there is some mistake. Yeah, this. और क्या मिस्टेक बोल रहा है भाई? You cannot store only one position is not enough, because you must remember whether the previous jump was backward. Okay. हाँ, तभी हाँ वही मैं यहाँ पे सोच रहा था कि मेरे को पता कैसे चलेगा इफ इट्स अ ए ऐड करना है यहाँ पे या बी ऐड करना है. ओके, तो Q should be an integer array and then current position was the previous position jump. So position of previous jump was backward. तो बैकवर्ड के लिए -1 स्टोर करेंगे, इसके लिए 1 स्टोर करेंगे. Okay, okay, okay. Is somebody texted on Discord? Hmm. It said it cannot be this. It's this. No, not for it. Sorry. This int array. एक सेकेंड, इसको हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यही कैलकुलेशन पहले चाहिए. अगर ये नहीं हुआ तो बाकी की चीज़ें हमें करनी है. लॉजिकली इट मेक्स सेंस. ठीक है. इंट एरे और क्यू में अपने को वो बोलना चाह रहा है forbidden length this. तो we have to set कि true or false was backward. तो लास्ट वाला यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यू इंट एरे 0,0 स्टोर करते, तो दैट मीन्स 0 इज नॉट लास्ट जंप was not backward and 1 would be last jump was backward. Okay, तो बेस्ड ऑन दिस अपने को फाइंड आउट करना है न्यू पोजीशन. सो यहाँ पे कंडीशन लगेगा एंड करंट डॉट 0. यहाँ पे होगा करंट डॉट 0. इफ इट्स x देन जम्प्स. इफ नॉट if current 1 is equal to 0. ठीक है, मतलब और 1. ठीक है, 1 इज मेक्स मोर सेंस. इट वाज बैकवर्ड. तो अभी न्यू पोजीशन जो होगा वो अपना करंट प्लस ए होगा. ठीक है, एल्स एल्स इट विल बी
न्यू पोजीशन इक्वल टू करंट करते हैं और करंट न्यू पोजीशन की भी ज़रूरत नहीं है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ही करंट कर देते हैं, करंट एल्स करंट इक्वल टू करंट प्लस बी, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत मेरे को नहीं लग रही है यहाँ पे ना, अभी इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है। क्या क्या तुतुल पुतुल भाई, क्यों, क्या रॉन्ग है इसमें? विजिटेड का भी कुछ रखना पड़ेगा। कम ही पूजा है, कहाँ कर्म ही पूजा है। ये अच्छी बात की, मज़ा प्रोसेस में आना चाहिए, यस। सोचो उस किसान का जिसने अनाज दिया है इस देश को, भाई हमारे अंदर इसका अनाज है, हमारे खून में उसका। बाप रे, तुमने बहुत डीप जा रहे हो भाई। इट्स टू डीप ब्रदर, इट्स टू डीप। हमने विजिटेड नहीं लिया है इसमें, तो विजिटेड भी लगेगा ऐसे मेरे को लग रहा है यहाँ पे। करंट इक्वल टू बी, ठीक है। देन व्हाट, उसके बाद हम क्या करेंगे? There is something about limit as well here. Help them get the position. The bug jumps according to the following rules. It can jump exactly a position forward to right. It cannot jump, it cannot this. The bug may jump forward or beyond, but it cannot jump to positions numbered negative integers. Given array of integers forward means that it cannot jump the position. Return the minimum number of jumps needed. Minimum number of jumps needed. So now I can check the usual condition key. If it's a backward, last jump was backward, then हम फॉरवर्ड मूव करेंगे एंड देन फॉरवर्ड में हम आगे के कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बेसिक सी चीज़, करंट माइनस बी नॉट प्लस बी। ब्लैंक्ड आउट। अगर इट्स क्या बोलते हैं, इफ़ इट्स जंपिंग फॉरवर्ड, फॉर एग्जांपल हम बस फॉरवर्ड के बारे में अगर सोचे, इफ़ इट्स जंपिंग फॉरवर्ड, then we have to first check that position should not be visited and it should not be forbidden, ठीक है। then only we can jump there. If we
can jump there, then we can add that particular element to the queue. ठीक है, और वो मार्क कर देंगे कि करंट वाला पोजीशन मतलब ये फॉरवर्ड हमने किया। ठीक है, अगर वो बैकवर्ड जंप करता है उस केस में हम पोजीशन माइनस कर देंगे, और लास्ट जंप बैकवर्ड नहीं होना चाहिए वो हम चेक कर सकते हैं। ओह देवा। हाँ, बिकॉज अगर उसने पहले कोई जंप ही नहीं किया है तो उस केस में क्या। तो हम जो नॉर्मली कोड लिखते हैं वो तो लिख लेते हैं, जंप प्लस प्लस और वाइल के बाहर रिटर्न, इट विल बी रिटर्न -1। ठीक है, ठीक है। और जो है तो इसको जो मैंने करंट लिया था ना ये गलत था, इट इज़ नोड एंड इट्स एन एरे नाउ। ठीक है, और यहाँ पे इंट करंट जो है वो है अपना नोड 0, एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन कि क्या इंट वाज लास्ट जंप बैकवर्ड इज इक्वल टू नोड 1। ठीक है, uh, तो if current equal to if current 0 नहीं, if current equal to x then jumps हम ये कर देंगे। if not हमें यहाँ पे बस ये करना होगा। ठीक है, this much कि करंट इक्वल टू करंट प्लस ए, क्योंकि पहले फॉरवर्ड हम उसको भेज के देखेंगे एंड देन वी विल चेक कि हमने विजिटेड वाला लिया ही नहीं, हमने सोचा विजिटेड नहीं लगेगा हमें ना, तो हम यहाँ पे एक विजिटेड एरे बना लेते हैं। विजिटेड एरे अपने को, कैन यू टेल मी कि विजिटेड क्या लगेगा, सेट लगेगा या एरे ही लगेगा? मेरे ख्याल से एरे ही लेते हैं, बुलियन 2D और विजिटेड न्यू बुलियन, एंड देन इसकी साइज क्या होगी, साइज क्या होगी भाई इसकी? Let me ask this question. Do we even need a visited matrix here? Yes, we need a visited structure, but not necessarily a literal matrix. The reason is that position alone is not the complete state. Suppose position 10, state 1 position, state previous jump was forward, position 2 previous jump was backward, these states have been। अच्छा, तो वो पोजीशन को मार्क नहीं करना है, वो जंप और उसको मार्क करना है अपने को। सो दिस इज अंडरस्टूड। व्हाट इज लिमिट? ओ भाई, ये कुछ अजीब ही सिस्टम है भाई। लिमिट क्या है इसमें? व्हाट इज दिस लिमिट? Limit means maximum positions up to which BFS is allowed to explore. The number line is अच्छा, theoretically infinite since forward jumps keep adding without boundary. BFS could continue forever. So we choose safe upper boundary 6000. Why 6000?
Why 6000 by? Oh, there is a constraint given. Forbidden length, forbidden x can be less than equal to 2000. A can be max 2000, so 2000 plus 2000 4000, तो 6000 कहाँ से आ रहा है? Because 6000 worst case safe boundary not special number from algorithm. In this problem the maximum values are forbidden less than 2000, 2000, 2000, 2000. In Java max position math max x max forbidden from. Then a safe exploration boundary is max position plus a plus b. The absolute worst case a plus b, because the bug may need to overshoot the largest should overshoot the target or forbidden the position, then they jump backward to reach useful. भाई these are unknown factors, ये पता होना एकदम ही impossible है कि 6000 कहाँ से आएगा, ये कैसे पता चलेगा हमारे कुन खाना हो गया आपका? यस यस मेरा हो गया। अथर्व तुम्हारा नहीं हो गया तो तुम खा लो, क्योंकि मैं इतना प्रॉब्लम सॉल्व करके ही सोऊंगा आज। यस, लेट हो गया आई नो थोड़ा सा, क्योंकि हमने बीच में बातें बहुत कर ली। किसी ने लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक द स्ट्रीम। तो इट्स सेइंग टेक अ लिमिट ऑफ दिस, और उसने क्या बोला कि इसको बुलियन लिमिट प्लस वन और टू, वाई टू? एक्सप्लेन। यू कैन टेक ऑफ अथर्व, you don't have to, because it's late for you as well, I know. Each position has two separate. Okay, okay, something new I learned. So it said take int limit is equal to 6000 uh, limit plus 1 and 2 visited. तो अपने को guys please do like the stream यार, it's been so long today, so you guys can like। तो पहले वाले में पोजीशन हमने जो ऐड किया है तो उसको ही डाल देते हैं 0,0, not sure about this, true, uh, then jump 0 then this, यहाँ तक करेक्ट है। इसका मेरे को डाउट है कि करंट इक्वल टू करंट प्लस ए, ठीक है हमने ये ले लिया, उसके आगे हम क्या करेंगे? और फिर वी हैव टू चेक अगेन दिस, तो अपने को तो करंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि करंट बाद में भी यूज़ होने वाला है। तो इंट फॉरवर्ड लेते हैं, ठीक है, और विल चेक इफ दिस फॉरवर्ड, पहले तो वो उससे लेस होना चाहिए। अभी हम लेस देन इक्वल टू जो भी है वो लिमिट हमने डिसाइड किया, तो उससे ये रखते हैं, एंड इट शुड बी फॉरबिडन में नहीं हो, फॉरबिड डॉट कंटेंट्स फॉरवर्ड कंटेंट्स। अब विजिटेड वाला का थोड़ा सा बकचोदी है, इट शुड नॉट बी विजिटेड, ठीक है। नाउ उसका पोजीशन है फॉरवर्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे वॉच बैकवर्ड जंप और क्या आएगा? मतलब 0 इज फॉर
forward and one is for mm, backward. Okay, if all these conditions, then we can add this QUE dot add this forward to this. Okay, and we'll go and mark visited uh, forward and 0 equal to true. Oh, bhai sahab. And for backward, we'll take this as int backward, and यहाँ पे if backward is less than equal to limit, no, backward should be greater than uh, equal to 0, greater than equal to 0, and should not be forbid dot contains backward and not visited. यहाँ पे 1 आएगा and here it will be backward. Okay, and then we will add QUE dot add uh, backward. ठीक है, and then visited backward comma 1 equal to true. इसका अलग position. Okay, there is some mistake, or there is no syntax mistake. Let's see. uh, int cannot be converted to int array. So यहाँ पे new int array forward comma 0 and यहाँ पे new int array backward comma 1. Oh, it worked. Output 25, but it should be -1 इस case में. In this case expected 3 which is correct. How many test cases are working? 89 out of 96. That means something edge case is missed. Mm. Guys, please do like the stream, yara. Guys, kindly like the stream. Whoever is joining for the first time, please do like the stream. We didn't use this was last jump backward. तो हमें दोनों में यूज करना है इसको. If I use was jump backward, if it is 0 and 0 and यहाँ पे it would be 1. One was last jump backward and यहाँ पे it would be this 1. Oh no, but पहले okay because I understood पहले केस एक बार तो उसको जंप करने होगा. Oh, okay, it worked. Yeah, because उसको एक बार तो जंप करने होगा पहले. Oh, it worked. यार
यार अच्छा रेट हो गया अपना सबमिशन का ना। सबमिशन का रेट अपना बढ़ गया है शायद। कितना था पहले एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया 61.5, टुडे इट मस्ट हैव इंक्रीज्ड। वो 61 सेमी एक्सेप्टेंस, ओ शिट, सॉरी फॉर दैट। इट वर्क यार भाई फाइनली। सो द बेस्ट थिंग, आर्यंश ठाकुर, मैसेज वाज रिट्रैक्टेड। क्यों भाई आर्यंश ठाकुर, वेलकम टू द स्ट्रीम एनीवेज। क्रैश हो रहा है फ़ोन, ओके ओके। फ़ोन ही बंद होने वाला है, दूसरे ने पढ़ने जा रहा हूँ, ओके ओके। हेल मैन, या कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच बड्डी। जिसने भी लाइक नहीं किया वो कर दो लाइक। और बैक टू दिस, ए एंटी ग्रेविटी, आई वांना अपडेट दिस। अपडेट करने में मज़ा आ रहा है। टारगेट नहीं अचीव हो पाया लेकिन ठीक है। रिफ्रेश, या ओके चलो। आर्यन आर्यन सिंह ठाकुर, कितने करी आज? दो ही किया यार, दो ही प्रॉब्लम हुए, टू ब्रदर। बैड लक। मैं इतना सोच के आया हूँ कि 19 प्रॉब्लम्स करने, दिस टू तो हो गए। सो दिस इज स्नेक्स एंड लैडर्स आई हैव सॉल्व्ड, एंड सॉल्व्ड दिस। इसका पैटर्न क्या है? shortest path, shortest path, I'll add the name later। दो ही प्रॉब्लम की यार, अभी हार्ड हार्ड वाले प्रॉब्लम में बाकी है। मैं कल साइकिल डिटेक्शन करके आता हूँ और इसमें से एक हार्ड प्रॉब्लम कर लेता हूँ, बस रूट्स, ताकि स्ट्रीम पे इतना ना इशू आए, तो आई कैन डू साइकिल डिटेक्शन नाउ। ठीक है चलो, दैट वाज इट फॉर द डे, एंड ऑन दिस नोट आई हैव टू एंड द स्ट्रीम। ये कौन सा ऐप है कर्सर? दिस वन, दिस इज नोशन एंड दिस इज एंटी ग्रेविटी। ये एंटी ग्रेविटी मैं तो यूज़ कर रहा हूँ स्ट्रीम पे, ऊपर स्ट्रीम दिख रहा है उसको अपडेट करने के लिए। बाकी दिस इज नोशन ब्रो, नोशन, दिस नोशन इज लाइक माई कंप्लीट जिंदगी इज इन द नोशन। सो चलो, अगर 20 लाइक्स हो जाते तो सही होता, बिकॉज वी आर जस्ट वन लाइक बिहाइंड द 20। सो एनीबडी हु इज willing to do that, the last like, so please do like the stream. Anybody who is joining the stream for the first time, kindly do like the stream. You don't have to subscribe to the channel yet, just like the stream, so that whenever I come online, the stream will come to your feed, your home page, your shorts feed, your notification. Then again tune in to the stream. Then also if you like what I'm doing over here, then you can think of subscribing. So for now you just have to like the stream. uh, हम डार्क मोड पे कुछ और लगा, ओ ओके ओके। 20 तो है, मेरे को 19 ही दिख रहे हैं यार। योर वाई दिस कोडिंग इज सो डैम हार्ड। इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट इवन इजी, इट्स जस्ट कि यू हैव टू डू, क्या बोले आप उसको। एआई के वजह से तो आसान हो गया है सब कुछ, पहले इतना आसान नहीं था। बताओ, पहले मैं ये दो क्वेश्चन एक स्ट्रीम पे कर ही नहीं पाता अगर एआई नहीं होता तो, because AI is there to help out with the mistakes. Coding is not that hard, if we can say this. क्यों मैसेज रिट्रैक्ट कर रहे हो? What's your name? Hip Prince. Hip Prince. Don't delete the messages. Okay, chalo. I guess we can end over here, but I'll be back. I'll be back. I'll solve this difficult questions. नेक्स्ट टाइम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में सॉल्व करके आ जाऊंगा, देन उसके बाद आई सॉल्व दिस टू क्वेश्चंस ऑन द स्ट्रीम, जंप 4 एंड जंप दिस। बट बिफोर दैट गाइज यू हैव टू लाइक द स्ट्रीम। सो आई एम, लोग डर जा रहे हैं क्वेश्चंस पूछ के खुद ही। यस, आई डोंट नो व्हाई एम आई दैट स्केरी और व्हाट्स द इशू।
क्या हवा चल रही है भाई। ऐसी ज़िंदगी चलती रहे मस्त आराम से, मज़े में, विल सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड ऑल, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सब करेंगे। चलो, thank you all for joining the stream. It was not that productive but yeah, मज़ा तो आया। मज़ा आना इज़ इम्पोर्टेंट, बाकी सब तो सेकेंडरी है। मज़ा आया, क्वेश्चन सॉल्व किया। नाउ वी आर 17 क्वेश्चंस अवे फ्रॉम 100 क्वेश्चंस, जो कि अपना नेक्स्ट टारगेट है। तो जल्द से जल्द आई गेस ग्राफ के क्वेश्चन ही अपने 100 क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट द नेक्स्ट इटरेशन चालू करेंगे। उसके बाद हम रैंडम पैटर्न्स, नहीं नहीं, जो पैटर्न्स मिस हुए हैं वो पैटर्न्स करेंगे, और जो जो कंसेप्ट मिस हुई है वो कंसेप्ट करेंगे। सो thank you all for tuning into the stream. जिसने भी like नहीं किया, please do like the stream, and we will see you tomorrow at the same time. I start the stream by 10 p.m. If you wanna join early as possible, then do join at 10 p.m. If you want to get a custom notification for that, you can join this Discord server. I have added the link in the pinned chat. You can join, click on that, and you can join the stream. uh, सब प्रोजेक्ट बनाना अभी रहा हूँ लॉजिकली, बट स्टिल आफ्टर मेनी डेज आई थिंक की फॉरगॉट। होता है कभी कभी ऐसे, लेकिन थोड़ा सा वही है कि ब्रशअप करना पड़ता है, हर किसी को करना पड़ता है, जंग खा जाता है नहीं तो। इतना भी सब कुछ भूल नहीं जाता है इंसान, बट या थोड़ा बहुत। गुड नाइट या पार्थ। पार्थ, आई वांट अपडेट फ्रॉम यू बिकॉज मैंने बहुत एनर्जी लगाई है तुम्हें समझाने में कि क्या करना है। आई होप तुम इसमें से कुछ आउटपुट लेके आओ। चलो, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।